So that's about it about us. We have a very small mission. It's to forge in the sense, carve out a fearless trader with wisdom, who can conquer these markets where there is a lot of noise, there are a lot of tips, there are a lot of things which are going on. So we want people to actually learn about markets, the basics of market, so that they can actually make profit out of it. Okay, it is not a satta bazaar as coined by many people. It is not a trading. Intraday trading is not a satta bazaar. Okay, it is just like your regular business, if you treat it like a regular business. Okay, so let's start. Few things about me, because I'm going to teach you, so you need to know about me. Okay. I have obtained couple of certificates. Why I'm able to teach you, or teach anyone for that matter, is because I have gone through my personal learnings from past 15 years in market. Of course, 7 to 8 years back you did not have trading view. So whatever SMA EMA lines which are being done now, earlier, 8 years back it was in the trading terminal, which is the green and red screen, which black screen which you see in most of the brokers place. So वहाँ पे we used to have the SMA and EMA lines. But if you talk about 12 13 years before the Lehman Brothers crash, what we used to do, we used to actually manually draw SMA and EMA lines, or based on um, different time frames. So I have started my journey from that time. Okay? From that time I have started my journey, and I've been trading. uh, I will not say that I'm successful. Reason being, there is never a top in stock market. You can never reach. If you do not run, the losses will catch you. So you keep running. There is never a stop. So I will not say that I'm successful, but I fairly, I do so much of profit that I can fairly manage it. Okay. So the most important certificate which I'm gonna get recent in next 15-20 days is the research analyst certification, because then I will not have any problem with SEBI, because you have seen so many videos which are running around with SEBI being raiding so many people. Okay, so this is a small profile about me. Okay, so what are we going to learn today? We are going to learn about CPR. Okay, it's going to be a very short course. So in short course, what I'm going to cover with you is, I'm going to cover what is CPR. Okay, who invented it, what, why it is, how it has been calculated, and why it is used. Okay, so these are the three main things which you need to understand before getting into any of this. And then I will teach you what kinds of CPR are there, what types of CPR. Okay, because there are varied CPR. Every day market gives you different opportunities, different structures. ठीक है, so every day market is not the same. अगर बुल रन है तो खाली ऊपर ही जाता रहेगा, ऐसा होता नहीं है. ठीक है, it's not like that. So every day your CPR changes. Okay, so every CPR changes on daily time frame. Then you have a weekly CPR as well. Then you have a yearly CPR also. Okay, monthly and yearly CPR. So there are four types of CPR. But in this in this session, I am only going to teach you types of CPR which form in daily time frame. Okay, not on weekly, monthly, and yearly. That is for a different class. This is only for daily time frame, daily intraday traders. Okay. Then I'm going to teach you about how, what is the relation of the previous day CPR and today's CPR, whatever is formed. Okay, why it is formed differently, or it is the same, what it is. Yeah, I'm going to teach you about that. And then the final chapter will be on. I'll give you a rule, specific rule, ki if this happens, what you can expect. Okay. Okay. I'm sure in chapter 4 you will have a lot of questions, but first, once you learn the rules, then trading becomes easier. Okay. Okay. So let's dive in. First things first. This is my YouTube channel. Thank you. In 2 months, I've got 100 subscribers thanks to you. Uh, and people who have not subscribed, request you to please subscribe my channel.
I have my Telegram channel as well. So Telegram channel में I post daily live links where I do live trading, which is completely free. I don't charge for it. You can join in, you can ask questions, you can make money if you want to make money. If you want to trade, you can trade. I give live trading scenarios also. I also share what happened, why it is going to happen. All these things I share in live. I stay in live from 9 o'clock to 3:30 continuously. You guys can join in. Okay, so please quickly join my YouTube channel and my Telegram channel. Okay, so let's start. हो गया क्या? थम्स अप दे दो कोई तो. Is my screen visible? Yes, screen is visible. Yes, sir. Okay, ठीक है, fantastic, super. Yeah, it's visible, Arshad. Thanks for the introduction. It was really nice. Thank you, sir. All the best, Arshad. Thank you, sir. Thank you. Okay, so let's dive in. So, what is CPR? Okay. CPR stands for book knowledge. It is central pivot range. Okay, why why it is calculated? It shows, it is a ready-made tool which shows support and resistance based on the price movement of previous day. Okay, based on yesterday's price movement, today's support and resistance has been calculated in this indicator. Okay, now who introduced CPR? It was not CPR earlier, it was called as floor pivots. Now Mr. Larry Williams is a great trader, was a great trader. He in fact in his book in 1979, he introduced a concept called floor pivots. uh, but in that book he has mentioned that he was using this concept for 5 years, and then he has got success rate. So imagine CPR was introduced in 1974 or somewhere, I don't know. Okay, okay. So it was not CPR, it was floor pivots. Okay, but floor pivots had only one single pivot line. Okay, what Franklin Ochoa did, he modified it based on the trending markets. Why? Because uh, in 1975 to 1985, markets did not have that much of price movements, that huge price movements, or it was very limited. So in 1985 or so, Frank Frank Ochoa actually modified a little bit of formula and renamed the floor pivots to central pivot range. Okay, he has also written all this in his book, The Pivot Boss. I would strongly recommend you guys to buy it, or I will give you a free link of it. Okay, free digital copy. I am gonna share it across. Anyways, now uh, आपने you have understood what is CPR, you have understood who invented CPR. ठीक है, what do I do with it doesn't matter, but why you should learn. Now this is very important, why you should learn. Okay, one is, in previous day whatever price movement has happened, okay, you need to understand what will the trend continue for the next day or will it not continue. Okay, now who tells that? CPR will tell you that whether the trend will continue or not. How it's going to do, I'll show it in the next slides. But this is what it does. It will show you the trend of the next day. Okay, then earlier how people used to draw support and resistance was back data. They used to spend hours and hours together to check in multiple time frames, 30 minute, 1 hour, through to a daily candle. They used to do a lot of research to understand what is the support and resistance. Okay, and support and resistance keep changing as you change time frame. Okay, whereas in CPR, support and resistance remain constant. There is a calculation for it. I will show you the calculation also. So the support and resistance remain stagnant for the entire day. Okay, so that price point acts very important. In fact, what actually happened at 47,700 in Bank Nifty yesterday, it kept on taking support of that particular CPR. So that was a pivot line. Okay. Of course, after people who know about money zone, people who know about market structure, they drew this line after say 12 o'clock. Okay.
but CPR was plotted one day before. ठीक है? So this is why you need to learn, because it's not like कि you come to the market, you open your system and start trading. It doesn't work like that. ठीक है? Every Before you come to an intraday session, 1 hour before, you should sit down. You should have a plan in your place. You need to know what has happened globally, what is the trend right now going on, what I will do if this happens. So all this plan should be there. Otherwise, you just come to the market, you do your trading. It's no point. उसको बोलते हैं सट्टा. ठीक है? But when you have a plan in place, when you know what it is going to happen, और सी लॉस होता है, प्रॉफिट होता है, इट इज ऑल सेकेंडरी. ठीक है? बट यू शुड नीड टू हैव अ प्लान. ठीक है? इट इज जस्ट लाइक अ बिजनेस. ठीक है? आप समझो, कोई कपड़े का व्यापारी है इधर, तो मैं आपको बोलता हूँ, कपड़े का व्यापारी या कोई भी व्यापारी, कपड़े का एग्जाम्पल लेते हैं. ठीक है? कपड़े के व्यापारी में ना, कोई भी अगर वो दुकान जाता है या दुकान खोलता है, नया शोरूम खोलता है, एनी शोरूम ही मेक्स. ठीक है? व्हाट व्हाट ही विल थिंक, अच्छा, आई नीड टू हैव इन दिस पर्टिकुलर एरिया, because their footfall I will have. I will only deal in menswear. Then I will only do ready-made or unstitched or whatever for that matter. So he has a plan, correct? He just doesn't. He has 10 lakhs rupees. He will go. He just goes and buys some shop somewhere, random shop, and he just does whatever comes on his way. That is not business. That is called as gambling. So same way in stock market, you need to have a plan. Ki what is going to happen? What are the events which have taken place? Where the price moved yesterday? Why it moved there? All this detail, you need to have a plan. And what can support you? Only CPR can support you, because every other indicators in last 8 years, I have gone through about 3,000 indicators in trading view. Every other indicator will change when the first candle opens, whereas CPR will not change. So CPR will tell you even if this candle opens here, what you need to do next. Okay, that is what I'm going to teach you today. Okay, guys, excited? Yes, yes, sir. Okay, great. Yes, sir. I hope I'm not going fast. I hope you guys are following. Yes, following, sir. Okay, fantastic. So, how CPR looks, terminology समझ लीजिए पहले. There is a TC, there is a pivot, there is a BC. ठीक है? Then you have R1, R2, R3, R4, S1, S2, S3, S4. ठीक है? ऐसे CPR प्लॉट होता है. ठीक है? This is how CPR is plotted. So you have 3 lines. Then you have these 4. You can go to R5, R6, R7, whatever. वो कैलकुलेशन में आप देखोगे तो it is you yourself can calculate. You don't need any indicator. But people who don't want to spend time on calculating can use this indicator on your trading view chart. Okay, I do not have any subscription for this guy. He does not pay me for giving spreading his indicator. It is free of cost available. He also has published the indicator free of cost in trading view, and I have personally used this indicator. It is really good. The plus point about this indicator is it will keep showing you next day's CPR as the candle progresses. So you will know where to take a trade, where not to take a trade. Okay? Okay? I will share you this PDF. Don't worry. You can write it down. But I will anyway share you this PDF. Okay? So now how CPR is calculated. Okay? So you saw there is a pivot, there is a TC, there is a BC. TC is top line central pivot, bottom central pivot. So it is not BCP, it is just told as BC. इतने सारे वर्ड्स यूज करने जरूरत नहीं है इसके लिए. It's just BC, TC. This is top central pivot, bottom central pivot, and then you have a pivot line. This is a major line. ठीक है? यहाँ से ही सब कुछ डिराइव होता है. इन दिस पिवट व्हाट इट इज टेकन केयर, क्या लेता है? देखो, हाई, क्लोज, लो डिवाइडेड बाय 3. ठीक है? उसका एवरेज. दिस इज हाउ इट इज कैलकुलेटिंग.
how the pivot line comes. ठीक है, any indicator. मैं सचिन भाई को before this session started, I was telling him this. Any indicator for that matter, ठीक है, वो किस बेसिस में आपको कैलकुलेट करता है, आपको मालूम है? Of course, I'm keeping volume aside. I'm keeping aside. Volume indicator, I'm keeping it aside. But any other indicator, on what basis it calculates? It calculates only based on four parameters: the high of the candle, close of the candle, open of the candle, and low of the candle. समझ रहा है? कोई भी इंडिकेटर आप ले लो, उसका बेसिस ऑफ कैलकुलेशन यही है. ठीक है, तो सीपीआर ने क्या किया है इसमें, है ना, ही इज नॉट टेकन द low is taken for the bottom central line because that itself is the line. ठीक है, but only these four characters लेके he this calculation has come into picture. ठीक है, दिख रहा है सबको the calculation? ठीक है, इतना सब कैलकुलेट मैं पहले ये करता था 8 साल पहले व्हेन इंडिकेटर वाज नॉट देयर. तो आई एम बीन यूजिंग सीपीआर फ्रॉम क्वाइट अ लॉन्ग टाइम, बट पहले ये मैन्युअली करता था. अभी भी मैं मैन्युअली करता हूँ बिकॉज देयर इज नो इंडिकेटर विच विल गिव यू वीकली नेक्स्ट वीक का क्या होने वाला है करके. ठीक है, वो कोई इंडिकेटर बताता नहीं है, सो आई मैन्युअली डू इट. स्टिल आई डू इट फॉर वीकली. Ashit bhai, there is one. There is one. If you go with any broker, अच्छा there ठीक is है, one. प्लीज मैसेज मी That लेटर is ऑन. a person I know. Yeah, sure, sure. ओके, ठीक है, तो आई हैव नॉट फाउंड इट वन. ठीक है, ग्रेट. इफ इट इज देयर, प्लीज शेयर द डिटेल सो दैट आई कैन यूज इट. बट राइट नाउ आई एम डूइंग मैन्युअली फॉर वीकली. ठीक है, वीकली एंड मंथली, whereas for daily it is available. This for daily you have the same indicator which works. ठीक है, so this is how the calculation is. ठीक है, यहाँ तक ठीक है, सबको समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, sir. Fine. अच्छा, फंटास्टिक. तो सीपीआर क्या है करके समझ में आ गया है सबको. यू गाइज हैव अंडरस्टूड व्हाट इज सीपीआर. व्हाट इज सीपीआर? करेक्ट. नाउ हैव यू गॉट द अंडरस्टैंडिंग कि व्हाई यू हैव टू यूज सीपीआर? समझ में आ गया वो भी? Yes, sir. हाँ, तो क्यों यूज करना चाहिए और क्या है वो आप समझ गए. तो कैसे करना है वो बाद में बताता हूं मैं आपको. ओके, फर्स्ट इज व्हाट, देन इज व्हाई. बिकॉज व्हाई इज इंपॉर्टेंट, नहीं तो कोई मतलब नहीं है. देन देयर इज नो पॉइंट इन दिस सेमिनार if you do not understand why you need to use it. If you think yes, I have to use it, मेरे को समझ में आ गया है कि मेरे लिए क्यों एडवांटेज रहेगा. अगर इफ यू हैव अंडरस्टूड दिस, देन स्टे इन द सेमिनार. और किसी को अगर समझ में नहीं आया तो प्लीज लीव द मीटिंग बिकॉज इट विल ओनली बी वेस्ट ऑफ टाइम हियर एंड फॉर यू. अगर किसी को समझ में नहीं आया तो, मतलब समझ में नहीं आया तो, अगर किसी को लगता है कि सीपीआर इज ऑफ नो यूज फॉर मी, बिकॉज आई हैव गिवन यू राइट नाउ व्हाट एंड व्हाई. आई विल गिव यू द मोस्ट इंपॉर्टेंट, हाउ टू डू इट. ठीक है, व्हाट और व्हाई आपने समझ लिया, तो हाउ टू डू इट आई विल टेल यू. ठीक है, शैल आई प्रोसीड? Yes, sir. ओके, फंटास्टिक. तो व्हाट और व्हाई आपने समझ लिया. ठीक है, नाउ टू अंडरस्टैंड हाउ टू यूज इट, यू शुड फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इट. ठीक है, तो अगर आपको समझना है कि कैसे इसको यूज करना है, तो इसके भिन्न भिन्न तरीके के फॉर्मेशंस को यू हैव टू अंडरस्टैंड. ठीक है, whatever types it forms. So there are, in my entire experience, there are totally 5 types of CPR which forms. ठीक है, one is the extreme wide CPR which is A. ठीक है, ये इधर है, ये extreme wide CPR है. ठीक है, नाउ बैंक निफ्टी में जो ट्रेड करते हैं और निफ्टी में जो ट्रेड करते हैं उनके लिए मैंने आसान बनाने के लिए मैंने बोला है कि बैंक निफ्टी में जब 150 पॉइंट्स का जो गैप रहता है ना, मतलब टॉप लाइन से लगा के बॉटम लाइन तक, समझो ये 48,000 है और ये हो गया 47,850, तो दिस इज अ वाइड सीपीआर. ठीक है, क्लियर? सो दिस इज
दिस इज योर वाइड सीपीआर, एक्सट्रीम वाइड, एक्चुअली वाइड नहीं, एक्सट्रीम वाइड, ठीक है। तो देन यू हैव अ नॉर्मल वाइड सीपीआर. नॉर्मल वाइड सीपीआर इज क्लोज टू अबाउट 100 टू 150, कभी कभार 125 पॉइंट्स होता है, कभी 100 पॉइंट्स होता है, ठीक है। तो दैट इज द रीजन इट इज कॉल्ड एज वाइड सीपीआर, बिकॉज वाइड और एक्सट्रीम वाइड में ज्यादा फर्क नहीं है, ठीक है। देन यू हैव नॉर्मल सीपीआर. नॉर्मल सीपीआर 50 पॉइंट का नॉर्मल सीपीआर होता है, 50 टू 65 75 पॉइंट्स का नॉर्मल सीपीआर होता है, ठीक है। दिस हैपेंस नॉर्मली इन एनी ट्रेंड बेस्ड मार्केट में. दिस इज द काइंड ऑफ सीपीआर विच विल, ओके, आई टेल यू व्हाई इट विल हैपन. एनीवेज, आप समझ लो पहले, देयर इज अ नॉर्मल सीपीआर आल्सो. देन देयर इज अ नैरो सीपीआर. नैरो सीपीआर मतलब इनका डिस्टेंस खाली 25 टू 30 पॉइंट से रहता है, ठीक है. And then you have a extreme narrow CPR. Extreme narrow is something called as single liner CPR, which was yesterday. ठीक है, कल का जो CPR था ना, that was single liner CPR. Single liner CPR मतलब तीनों लाइन एक साथ में स्क्वीज हुए रहता है, एक साथ में रहता है, ठीक है. ऑफकोर्स सिंगल लाइनर बोलते हैं, बट इट इज नॉट द राइट टर्मिनोलॉजी. एक्सट्रीम नैरो बिकॉज इन तीनों लाइन में ना एक 10 पॉइंट के अंदर ही ये तीनों लाइन होते हैं, ठीक है. इसके लिए 47,700 जो कल मूवमेंट में घूम रहा था पूरा दिन, एंटायर हाफ डे, वो पूरा 47,700 पे घूम रहा था बिकॉज इट वॉज अ एक्सट्रीम नैरो सीपीआर, ठीक है. वहां पे ही था वो, ठीक है. सो दीज आर द टाइप्स ऑफ सीपीआर, 5 टाइप का सीपीआर, ठीक है. तो अभी खाली आप टाइप समझ लोगे तो यू कैन ट्रेड, ऐसा नहीं होता है, ठीक है. बिकॉज एज आई टोल्ड यू अर्लियर, सीपीआर टेक्स द डेटा ऑफ प्रीवियस डे, ठीक है. तो प्रीवियस डे को हम भुला नहीं सकते, हमको समझना है कि प्रीवियस डे में क्या हुआ था और नेक्स्ट डे में अभी क्या होने वाला है, आज क्या होने वाला है. तो आज का तो सीपीआर बोल दिया कि भाई ये S1 है, दिस इज R1, इट विल कम हियर, इट विल गो देयर, दिस इज द सपोर्ट, दिस इज द रेजिस्टेंस, बट दैट इज नॉट इनफ. ओके, दैट डेटा इज नॉट इनफ, ठीक है. तो यू हैव टू अंडरस्टैंड द रिलेशन बिटवीन टुडेज सीपीआर एंड यस्टरडेज सीपीआर, कल का सीपीआर, ठीक है. तो there are 7 types of relationships which come in, ठीक है. there is ascending, engulfing ascending, descending CPR, ठीक है. इसका नॉर्मल एक्सप्लेनेशन है, ये मैंने डिटेल में अभी दिया है, नेक्स्ट दिया. तो there are 7 types of relationships, ठीक है. तो let's take the first type which is ascending CPR, ठीक है. ascending CPR का मतलब क्या होता है मालूम है? ये CPR लाइन है, ठीक है. मतलब ये समझ लो थर्सडे का सीपीआर लाइन है, तो ये फ्राइडे का. इट इज नॉट थर्सडे फ्राइडे, आई हैव जस्ट टेकन रैंडमली फ्रॉम चार्ट, बट आई एम गिविंग यू एन एग्जांपल. ये समझो थर्सडे का सीपीआर है, फ्राइडे का सीपीआर है. तो फ्राइडे का सीपीआर और थर्सडे का सीपीआर में देयर इज अ गैप, मतलब ये लैडर के जैसा या स्टेप के जैसा चढ़ रहा है. तो जब स्टेप के जैसा चढ़ता है तो दैट मीन्स द ट्रेंड इज बुलिश. समझ रहा है? सिंपल. चढ़ाई में क्या होता है? वी आर क्लाइंबिंग अ माउंटेन, वी आर क्लाइंबिंग अ स्टेयर, विच मीन्स व्हाट? वी आर गोइंग अप, करेक्ट. तो व्हेन वी आर गोइंग अप, विच मीन्स इन मार्केट टर्मिनोलॉजी वी आर बुलिश, ठीक है. मतलब वी आर गोइंग अप, द प्राइस इज गोइंग अप, ठीक है. सो इट इज अ बुलिश. इसमें आपको रूल क्या समझना है, क्या याद रखना है कि इन अ बुलिश ट्रेंड जो R1 है ना, वो हमेशा टच करते हैं, हमेशा R1 R2 R3 इनको टच करते रहते हैं. लेकिन जो S1 है ना, उसको हाथ ही नहीं लगाते अपन, उस पर आता ही नहीं है, प्राइस आता ही नहीं है. इनफैक्ट सीपीआर तक भी कभी कभार प्राइस आ जाता है, लेकिन S1 तक आता ही नहीं है. जिस दिन S1 तक आता है ना, उस दिन ट्रेंड चेंज हो जाता है, ठीक है. और वो ट्रेंड कैसे चेंज होता है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है. 2 रूल याद रखिएगा कि R1 और S1 बुलिश ट्रेंड में R1 को टारगेट किया जाता है, ठीक है. दैट इज द फर्स्ट रूल. सेकेंड रूल है इसका क्लोजिंग, 5 मिनट या 15 मिनट या 1 आवर का कैंडल का क्लोजिंग हमेशा जो नेक्स्ट डे का सीपीआर रहता है उसके ऊपर रहता है, हमेशा उसके ऊपर रहता है, अगर उसको बुल रन कंटिन्यू करना है तो, ठीक है. समझ रहे हैं? इफ इट नीड्स टू कंटिन्यू द बुल रन,
always the last candle of the day, the closing of the day will be above the CPR of the next day which is gonna form. समझ रहे? ठीक है? I cannot read the messages right now, but I'll read it after the class. ठीक है? तो so that's the second rule to remember. So if you find this in 2 consecutive days, 2 दिन में अगर आपको दिखता है ऐसा, ठीक है, तो ये एक दिखा था फर्स्ट डे, सेकेंड डे, ठीक है, जब भी 2 दिन में ऐसा दिखता है तो देन वी विल नो कि ट्रेंड हैज टर्न्ड बुलिश. ठीक है, द मिनट द ट्रेंड इज टर्न्ड बुलिश, यू हैव टू सी कि सेकेंड डे में व्हाट वाज द क्लोजिंग वाज अबव द सीपीआर. इधर दिखता है आपको, द क्लोजिंग वाज द अबव द सीपीआर. तो इसके लिए इट इज इन अ बुल ट्रेंड. तो हमेशा याद रखना, बुल ट्रेंड में स्टेप सीढ़ियों के जैसा होता है. सीपीआर हमेशा ऊपर जाते रहता है ऐसे, क्योंकि प्राइस भी ऊपर जाता रहता है. ठीक है, दैट इज द बुलिश ट्रेंड. फिर सेकेंड टाइप ऑफ रिलेशनशिप हैपेंस इज एनगल्फिंग असेंडिंग सीपीआर. एनगल्फिंग असेंडिंग सीपीआर. अभी एनगल्फिंग क्यों बोलते हैं हम? ओवरलैपिंग बोल दो आप, अगर एनगल्फिंग समझ में नहीं आता है तो. एनगल्फिंग overlapping CPR is basically whenever the top line of the present day is above the top line of the previous day. ठीक है, but your bottom line is also above the bottom line of the previous day. ठीक है, थोड़ा कंफ्यूजिंग है बट समझ लो कि तीनों लाइन पिछले वाले लाइन से ऊपर होना चाहिए, तो दैट इज कॉल्ड एज असेंडिंग सीपीआर. ठीक है, whenever this happens, this is a first sign for a trend change. Remember guys, remember this is a first sign of trend change. I'm not confirming कि trend change हो गया करके, I'm telling you this is a first sign. ठीक है, मतलब हम moderately bullish हैं. ठीक है, मतलब एक प्लेटफॉर्म आ गया है, हम चढ़ के एक प्लेटफॉर्म पे आए हैं. ठीक है, या तो इस प्लेटफॉर्म से और ऊपर जाएंगे या तो फिर इससे नीचे गिरेंगे. ठीक है, तो दिस engulfing ascending CPR is just a platform. ठीक है, बट इट इज अ क्या बोलते हैं, upwards inclining platform. मीन्स दिस प्लेटफॉर्म इज नॉट फ्लैट. ये अपवर्ड है ना, थोड़ा तो अपवर्ड है ना इससे और इससे, तो इट इज अ अपवर्ड इंक्लाइनिंग प्लेटफॉर्म. इट इज नॉट अ फ्लैट प्लेटफॉर्म. ठीक है, फ्लैट प्लेटफॉर्म भी आता है, मैं आपको समझाता हूं. तो ये समझ गए एनगल्फिंग असेंडिंग सीपीआर का मतलब क्या होता है, समझ गए? जब भी ये ऐसा केस आता है तब अपने जो लॉन्ग पोजीशंस है उस पे सतर्क होने की टाइम आ गई है. मतलब whenever this kind of event happens, your long positions, you have to be careful of your long positions. I'm not telling you to exit your long positions. I'm telling you you have to be careful about your long positions. ठीक है, then of course जो मैंने whatever I told you on the ascending CPR, उसका ऑपोजिट इज डिसेंडिंग सीपीआर की नीचे आता है. डिसेंडिंग सीपीआर में सपोर्ट्स को टारगेट किया जाता है, रेजिस्टेंस पे आता ही नहीं है प्राइस. मतलब ये ठीक है, जो असेंडिंग में समझाया उसका एक्सट्रीम ऑपोजिट है ये. ठीक है, एग्जैक्ट ऑपोजिट है, नॉट एक्सट्रीम, एग्जैक्ट ऑपोजिट. ठीक है, सो सेम थिंग विद डिसेंडिंग सीपीआर, सेम थिंग विद एनगल्फिंग डिसेंडिंग सीपीआर. ठीक है, फिर एक इवेंट आता है कि इट इज अ सेम सीपीआर. सो दिस इज अ सेम प्लेटफॉर्म. मतलब आप चढ़ाई के बाद या उतरने के बाद यू हैव अ सेम प्लेटफॉर्म. ठीक है, which means after a uptrend or after you climbing up or after you coming down, there is a straight platform. So straight platform में what will happen in market? आप या you will not be able to go down, you will not be able to go up, you will only roam around. Generally है ना, जब भी whenever you go up and you go up or come down, ठीक है, थोड़ा तो सांस फूलता है. अब मेरा तो फूलता ही है. ठीक है, आई एम ओबीज एंड आई एम 40, तो फूलता ही है. तो जब भी फूलता है तो आई सिट इन अ प्लेटफॉर्म, आई सिट डाउन.
आई सिट ऑन अ सोफा। तो सिमिलरली आपका जब भी ये ऐसे इवेंट आता है 2 दिन कंटिन्यूसली, तो समझ जाना कि इट इज गोना बी अ फ्लैट ट्रेडिंग डे। ठीक है, इसमें आपका ट्रेंड कब डिसाइड होगा? जब भी R2 या RS2, सेकेंड वाला, फर्स्ट वाला लाइन लाइन, मतलब ये लाइन नहीं, ये वाला लाइन जब भी ब्रीच होता है ना, जब भी इसको तोड़ता है, तब आपका ट्रेंड डिसाइड होता है। ठीक है, तब तक द ट्रेंड इज साइडवेज। साइडवेज है, इस ट्रेंड में क्या करना वो मैं आपको बाद में समझाऊंगा, बट समझ लो आप कि रिलेशनशिप ऐसा है। ठीक है, दिस इज ऑन द सेम सीपीआर। देन यू हैव सेम सीपीआर में कभी कभार है ना, देखो आप देख सकते हो इधर सेम सीपीआर है, सेम लाइन में है, लेकिन हाँ इधर तो सेम ही है। सेम सीपीआर में अभी सेम है, ये दोनों ऊपर का लाइन सेम है, नीचे का लाइन थोड़ा नीचे है, और उसके नीचे वाला लाइन और भी नीचे है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं एनगल्फिंग सेम सीपीआर बट वाइड। मतलब कल का रेंज थोड़ा टाइट, थोड़ा ज्यादा था, आज का रेंज बहुत बड़ा है, तो इसके लिए साइडवेज ही होगा। इस दिन आपको स्पेसिफिकली ट्रेड नहीं करना चाहिए। जो भी ऑप्शन बायर्स हैं इनको ट्रेड नहीं करना चाहिए। इनफैक्ट ऑप्शन सेलर्स के लिए ये चांदी का दिन है। और अगर ये टाइम पे अगर आपको थर्सडे के टाइम पे आ गया, जब एक्सपायरी है थर्सडे, या वेडनेसडे के टाइम पे आ गया, या ट्यूसडे के टाइम पे आ गया, वेडनेसडे आजकल बैंक निफ्टी का एक्सपायरी होता है वेडनेसडे, अगर ट्यूसडे को ये ऐसा आ गया, तो उस दिन है ना, जो भी एटीएम का एटीएम अगर समझते हो तो एटीएम का स्ट्राइक प्राइस आप सेल कर दो दोनों। आपको जब तक एंड 330 होगा तब तक प्रॉफिट ही होगा, 100% प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो ये सेलिंग स्ट्रेटजी मैं अलग से बोलता हूं, बट इसमें आपको साइडवेज रहेगा मार्केट। साइडवेज में ऑप्शन सेलर ही कमाता है, ऑप्शन बायर नहीं कमाता है। ठीक है, समझ गए? सो दिस इज एनगल्फिंग, बट जो प्रेजेंट डे का है वो बड़ा है पिछले दिन से, और उसको खा रहा है। ठीक है, ओवरलैप हो रहा है उसको। ठीक है, इट इज ओवरलैपिंग द प्रीवियस डे सीपीआर। ठीक है, बट सिमिलर सिचुएशन उल्टा भी हो सकता है ना, मतलब यू हैव बड़ा सीपीआर ऑन द प्रीवियस डे एंड इस बार छोटा सीपीआर आया। दैट डे यू मार्क द हाई एंड लो ऑफ द प्रीवियस डे। जब उसको ब्रेक करेगा, बड़ा ब्रेकआउट आता है, ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आता है, बड़ा आता है। ठीक है, मतलब ये पोजीशन आपको बताता है कि अभी ब्रेकआउट करने वाला हूं मैं। ठीक है, समझ रहे? सो दिस इज व्हाट इज एनगल्फिंग सीपीआर, लेकिन इसको नॉर्मल लैंग्वेज में इनसाइड एनगल्फिंग भी बोलते हैं। ठीक है, तब मार्केट या तो इसको अगर इसके हाई को तोड़ता है तो ऊपर जाता है। ठीक है, अब देखो ये जो हाई था इसका, इसके हाई को तोड़ा इसने और बहुत ऊपर गया। ठीक है, वैसे ही नीचे भी ऐसे ऐसे ही आता है, अगर इसका लो अगर ब्रेक किया होता तो और नीचे जाता। ठीक है, दैट इज एनगल्फिंग सेम सीपीआर बट नैरो। ठीक है, आप समझ गए यहां तक? रिलेशनशिप समझ गए? ओके गाइस, यू कैन स्पीक। रिलेशनशिप समझ गए आप? Yes, sir. सारा Yes, sir. क्या क्या रिलेशनशिप है इसका सब समझ गए आप? चलो ठीक है, फंटास्टिक। तो आपने मैंने आपको अभी क्या सिखाया? आपको मैंने सिखाया सीपीआर क्या होता है, किसने इन्वेंट किया है, उसका कैलकुलेशन क्या है। ठीक है, और फिर मैंने आपको सिखाया कि क्या क्या टाइप का सीपीआर होता है और उसका रिलेशनशिप क्या है। ठीक है, इतना आप समझ गए? इधर तक अगर किसी को डाउट है तो अभी पूछ लीजिए, बिकॉज नेक्स्ट हम डायरेक्ट ट्रेडिंग पे जाएंगे। नेक्स्ट सेशन का डायरेक्ट ट्रेडिंग पे है, इसके लिए नेक्स्ट सेशन नहीं, सॉरी, नेक्स्ट स्लाइड रूल ऑफ ट्रेडिंग है। इधर तक समझ में आ गया सबको? Yes, sir. एनीबॉडी एल्स? किसी को कुछ पूछना है, बताना है? Yes, sir. Yes, sir. हम्म? पानी पी लेगा, मैं तो पानी पी लिया अभी। ठीक है, anyway, चलो अभी आपको रिलेशनशिप समझ में आ गया? क्या
सीपीआर होता है वो समझ में आ गया। चलो, तो ट्रेड कैसे करना, ठीक है, दैट विल बी आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई सीपीआर तो समझा दिया, कौन वो विलियम्स है वो भी समझा दिया, व्हाट सीपीआर कैसे कैलकुलेट करना है वो भी समझ में आ गया। मैथमेटिक्स ही है, कैलकुलेटर निकाल के कैलकुलेट कर सकते हैं, कहाँ क्या वैल्यूज लेना है, आई नो वी हैव गॉट दैट वैल्यूज, ठीक है, ऑल दैट इज डन, बट हाउ डू यू ट्रेड, द मोस्ट मिलियन डॉलर क्वेश्चन, हाउ डू यू ट्रेड, ठीक है। तो अगर मैं आपको सीपीआर दिखाऊं, तो ये सीपीआर होता है, ठीक है। आप इतना समझ लो कि कोई भी इवेंट हो मार्केट में, कुछ भी हो, कैंडल या तो यहां खुलेगा, या तो यहां खुलेगा, या तो यहां खुलेगा, मतलब या तो सीपीआर पे खुलेगा, या तो R1 के ऊपर खुलेगा, या R1 पे खुलेगा, या तो S1 या S2 पे खुलेगा, या इसके बीच में खुलेगा, करेक्ट। तो तीन ही सिनारियो है, सीपीआर के ऊपर, सीपीआर के नीचे, सीपीआर के अंदर। और कोई सिनारियो है? नहीं। तीन ही सिनारियो है ना, सीपीआर लाइन बनता है, या तो सीपीआर के अंदर होता है, या तो सीपीआर के ऊपर होता है, या सीपीआर के नीचे होता है, करेक्ट। फॉरगेट R1 R2 एंड ऑल, वो बाद में आता है, बट सिनारियो तो वही है, तीन ही जगह खुलेगा, ठीक है। तो व्हाट डज सीपीआर डज, पिछले दिन का प्राइस मूवमेंट के हिसाब से आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस बता दिया, बट उस पे ट्रेडिंग के लिए आपको क्या करना है, आंख बंद करके, अच्छा भाई असेंडिंग सीपीआर है, मॉर्निंग 9:15 48,000 सी बाय, असेंडिंग सीपीआर ना, इट डजंट वर्क लाइक दैट, ठीक है, इट डज नॉट वर्क लाइक दैट। सो व्हाट यू हैव टू डू, you have to see where the first candle opens, first 5-minute candle, not even 1 minute, because aajkal since VIX is high, your 1 minute candle is very volatile, your 3-minute candle is also volatile, but 5 minutes tak that is also volatile, nahi karke nahi, but if you consider 5 minutes for intraday trading, 5 minutes is the best time frame, 5 minutes candle का क्लोज कहां होता है, दैट यू हैव टू आइडेंटिफाई, ठीक है। सो बेस्ड ऑन द फर्स्ट कैंडल, दीज आर द रूल्स यू नीड टू फॉलो। फर्स्ट आपको क्या करना है, सीपीआर ओवरऑल जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला कि यू नीड टू हैव अ ट्रेड प्लान। ट्रेड प्लान कैसे करोगे आप, ठीक है, सब बोलते हैं यार ट्रेड प्लान चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, मेरे को कुछ समझ में नहीं आता, मैं कैसे ट्रेड प्लान कैसे बनाऊं। तो कैसे बनाने का, फर्स्ट यू हैव टू फर्स्ट अंडरस्टैंड कि ट्रेंड कहां पे है मार्केट का, वेयर इज द ट्रेंड, इज इट गोइंग अप, इज इट गोइंग डाउन, और इज इट एट द प्लेटफॉर्म, और इज इट एट द इंक्लाइनिंग प्लेटफॉर्म और डिक्लाइनिंग प्लेटफॉर्म, ठीक है। तो फोर टाइप्स ऑफ ट्रेंड आर देयर, you need to identify that trend, ठीक है। once you identify that trend, and then the first candle opens between the CPR and R1, ठीक है, समझ रहे हैं, आई होप टर्मिनोलॉजी समझ में आ रहा है ना, CPR R1 PDH इज प्रीवियस डे हाई। मैं बहुत फास्ट में जा रहा हूं, बट आई होप आपको टर्मिनोलॉजी समझ में आ रहा है, ठीक है। एनीवेज, अगर फर्स्ट कैंडल सीपीआर और R1 के बीच में खुला, मतलब असेंडिंग सीपीआर में फर्स्ट कैंडल यहां पे खुला, देखो इधर खुला ना, इधर दिख रहा है, फर्स्ट कैंडल खुला, तो क्या करना चाहिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाटएवर इज द कैंडल कलर, ठीक है, कैंडल कलर के ऊपर डिपेंड मत होना, कहीं पे भी, जो भी, जहां पे भी खुला, ठीक है। अगर असेंडिंग सीपीआर है, समझ लो, असेंडिंग सीपीआर रिलेशनशिप में ध्यान रखना, अगर असेंडिंग सीपीआर है, दिस इज द रिलेशनशिप, अगर असेंडिंग सीपीआर है तो आपको मालूम है ट्रेंड बुलिश है, करेक्ट। जब भी ट्रेंड बुलिश रहता है, असेंडिंग सीपीआर है, तो जो भी अगर आपको डिप मिलता है,
तो वहां खरीद लेने का। तो वॉट एवर डिप यू गेट, देयर यू नीड टू बाई, you need to only find buying opportunities. This does not mean that first 5 minute candle is a red candle and I will buy immediately. It does not mean that. Where you need to buy? You need to buy at pivot level, the center line. CPR में 3 लाइन है ना, उसके सेंटर लाइन पे यू हैव टू बाई। ठीक है, एसएल कहाँ लगाना वो दूसरे क्लास के लिए, बट सेंटर लाइन पे यू नीड टू बाई। एंड टारगेट क्या होगा आपका, वो तो सीपीआर है, R1 रख लो, टारगेट आराम से जाएगा। ठीक है, और अगर फर्स्ट कैंडल ओपन एट R2 तो एट R1 यू नीड टू बाई। ठीक है, एट एनी डिप, जब भी नीचे गिरता है मार्केट और R1 के पास आता है या पीवट लाइन के पास आता है या S1 के पास आता है, उसका सिनेरियो थर्ड स्लाइड में है। अगर S1 के पास या प्रीवियस डे लो के पास या पिवट के पास या फिर R1 के पास आता है, तभी आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढना है। लेकिन किस केस में? जब ये बुलिश ट्रेंड में है। ठीक है, बेरिश ट्रेंड में आपको S1 पे बाई नहीं करना है। ठीक है, इसके लिए फर्स्ट आपको क्या करना है, ट्रेंड समझना है मार्केट का। कुछ भी आप करने से पहले ट्रेंड समझना है मार्केट का। ट्रेंड भगवान होता है, ऑफ कोर्स प्राइस होता है, प्राइस तो परमात्मा होता है, बट ट्रेंड आपका नेक्स्ट देव है। ओके, सो इफ इट इज अ असेंडिंग सीपीआर, एवरी डिप आपको बाई करना है। ठीक है, वाई यू हैव टू बाई एवरी डिप? बिकॉज इट इज द ट्रेंड इज सुपर बुलिश। असेंडिंग सीपीआर में ट्रेंड इज सुपर बुलिश। ठीक है, एनगल्फिंग सीपीआर होता है तो ट्रेंड इज मॉडरेटली बुलिश, मतलब ट्रेंड चेंज हो सकता है। मैंने आपको बताया था रिलेशनशिप में कि जब भी एनगल्फिंग असेंडिंग सीपीआर होता है तो दैट इज अ फर्स्ट सिग्नल टू फॉर अ ट्रेंड चेंज, दैट इज अ फर्स्ट सिग्नल। ठीक है, जब भी सेम सीपीआर होता है तो R1 के ऊपर ही आपको बाइंग करना है। अगर सेम सीपीआर का मतलब प्लेटफॉर्म होता है, अगर चढ़ाई के बाद, मतलब चढ़ने के बाद, लैडर चढ़ने के बाद अगर स्ट्रेट प्लेटफॉर्म मिलता है, तभी आपको R1 के ऊपर ही लेना है, नहीं तो उस दिन आपको ट्रेड नहीं करना है। ठीक है, अगर इंक्लाइनिंग मतलब इंक्लाइनिंग प्लेटफॉर्म है, चढ़ाई हुआ प्लेटफॉर्म है, तो तभी भी आपको R1 के ऊपर ही लेना है। ठीक है, बीच में कहीं पे भी आपको ट्रेड नहीं लेना है। और अगर डिक्लाइनिंग प्लेटफॉर्म है, डिक्लाइनिंग प्लेटफॉर्म है, तो आपको प्रीवियस डे हाई जब होता है, जब ब्रीच होता है, तब आपको लेना है। ठीक है, समझ रहे हैं? सो ऐसा रूल है आपको। अगर फर्स्ट कैंडल सीपीआर और R1 के बीच में खुला तो ठीक है, तो सारे बुल ट्रेंड में सीपीआर और R1 के बीच में थोड़ी ना खुलता है, कभी कभार R2 पे भी खुलता है, कभी कभार R3 पे भी खुलता है। तो सेम लॉजिक यूज करना है। R1 के जगह पे आप सीपीआर का नाम रख दो और R1 के जगह R1 R2 के जगह पे R1 करके लिख लो। ठीक है, यू जस्ट मॉडिफाई एज पर द कैंडल, वेर एवर द कैंडल ओपन्स। इफ इट ओपन्स अबोव सीपीआर, अगर अबोव सीपीआर जब भी कैंडल खुलता है, यू फॉलो दीज ओनली दीज रूल्स, नथिंग एल्स। ठीक है, अगर सीपीआर पे खुला तभी क्या करने का, तभी आपका टारगेट छोटा हो जाता है। सीपीआर पे खुलता है तब आपका टारगेट छोटा हो जाता है, मतलब पिवट के पास अगर आप लोगे तो पिवट और R1 का 50% लाइन है ना, वहां तक ही आपका टारगेट होना चाहिए। ठीक है, तो ये मैं आपको दूंगा, तो आप इसको पढ़ सकते हो, समझ सकते हो। कुछ समझ में नहीं आया तो यू कैन आस्क मी एनी टाइम, आई एम ऑलवेज अवेलेबल। इनफैक्ट लाइव सेशन में मैं इसी से ही लाइंस ड्रॉ करता हूँ, इसी से ही मैं आई डोंट नो कौन है लाइव में, जो इधर कौन है पता नहीं, जो लाइव में मेरे साथ जुड़ते हैं। मैं एक एरो मार्क्स ड्रॉ करता हूँ कि या तो इधर से इधर तक जा सकता है, इधर सपोर्ट ले सकता है, और ऑफ कोर्स मेरा हिट रेट 80 to 85% है। एंड कोई भी जो लाइव में ज्वाइन करते हैं दे कैन टेल अबाउट इट, बट ऐसा है।
ठीक है। सो सीपीआर पे खुलता है तो क्या करना चाहिए, उसका रूल्स है इधर। ठीक है। सिमिलरली सीपीआर के नीचे खुलता है तो क्या होता है। ठीक है। हमें बुलिश ट्रेंड में भी ऐसा कभी कभार होता है कि सीपीआर के नीचे गैप डाउन ओपनिंग दिखता है अपने को। समझ लो कभी भी बुलिश ट्रेंड है, कल बुल था, परसों भी बुलिंग पॉजिटिव में क्लोज हुआ, उसके 3 दिन पहले भी पॉजिटिव में खुला, तो देर आर पॉसिबिलिटी कि फोर्थ या फिफ्थ डे वी विल सी अ डिप। ठीक है। लेकिन डिप में अगर S1 को ब्रेक नहीं किया, S1 को ब्रेक नहीं किया, तो समझ जाना बुल ट्रेंड अभी तक इंटैक्ट है। इट वॉज जस्ट अ नॉर्मल प्रॉफिट बुकिंग। समझ रहे, ट्रेंड चेंज नहीं हुआ है। ठीक है। तो आप क्या समझोगे इसमें, इसमें आप समझोगे कि कहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है और कहाँ पे एक्चुअल सेलिंग हो रहा है। यही कंफ्यूजन होता है ना सबको कि साला ये तो ऑप्शन चेन में भी बताता नहीं है कि वेदर देर इज लॉन्ग बिल्डअप और शॉर्ट बिल्डअप। of course बताता है but it is not that accurate, or it is a 3 minute delayed data. But uh, with CPR you can understand whether it is a profit booking or it is a fresh selling which is happening. Understood? So this is for the bullish trend. Same thing goes for bearish trend. Bearish trend में you need to change the scenarios. मतलब R1 का S1 होता है, S1 का R1 होता है, वैसे। ठीक है। bullish scenario में you will not get a descending CPR. Always remember, you will not get a descending CPR. You will not get a descending engulfing descending CPR. You will not get. Market structure में हमेशा याद रखना, you will have a platform first. Platform के साथ you will have an inclining platform, and then you will have a steps to go up. That is how bull run starts. ठीक है। बुल रन क्या, आप यू डू वॉट एवर इन योर लाइफ। ठीक है। वेन एवर यू गो टू अ माउंटेन, ओके, वेन यू हाइक अ माउंटेन, ठीक है, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू हैव हाइक्ड अ माउंटेन। वेन एवर यू गो टू हाइक अ माउंटेन, क्या होता है, वेन फर्स्ट यू ट्रैवल इन रोड विच इज कंप्लीटली फ्लैट, आराम से ब्रीज व्रीज लेके मस्त यू ट्रैवल फ्लैट, करेक्ट। then what will happen, before the mountain comes, I don't know how many of you observed it, your road becomes inclining, मतलब ऊपर की तरफ जाता है बिफोर द माउंटेन कम्स। बिकॉज माउंटेन में तो टेक व्हीकल, यू हैव टू क्लाइम, करेक्ट। सो बट टिल दैट पॉइंट ऑफ स्टेप्स you will have an inclining road, correct. Similarly when you after, then you have a steps which will take you to the top of the mountain. So this is the bull trend, ऐसे bull trend होता है। Similarly bear trend में you come down of the mountain, then you have a declining road, and then you have a flat road। समझ गए। CPR exactly does this only. You should read, you should know how to read it। ठीक है, समझ गए। So this is on the bearish trend। तो that's about it। कोई questions है तो बोलिए। Now the floor is open। Okay, questions। Yes, yes। क्या हुआ, ठीक है। कोई questions है तो पूछिए। You have understood, not understood, I can पास डेटा से देख के बोलना है कुछ तो बोल सकता हूँ। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया कॉन्सेप्ट, आई वॉज वेरी फास्ट, तो पूछिए, आई विल टेल यू। तरुण जी, यस सर, यू हैव सम क्वेश्चन। गाइस, What is the Maybe probable? it's okay. Continue. No, you continue. No problem. You started. So basically, my question is, can you show us how it's transferable to stocks? stocks we use weekly CPR, we don't use daily CPR for less than 4,000 रुपीज काउंटर। जो भी 4,000 रुपीज काउंटर के नीचे है, फॉर देम वी विल नॉट यूज डेली CPR, वी ओनली यूज वीकली CPR। इट इज द सेम थिंग फॉर वीकली, इवन फॉर वीकली CPR। मैं आपको दिखाता हूँ। टेल मी अ स्टॉक ना, आई विल टेल यू।
Give me a stock. Davis Lab. Davis. It's a good opportunity for Monday as well. अपॉर्चुनिटी तो ठीक है, बट पहले ये देख लेते हैं ये कितने का काउंटर है डेविस लैब. 3,500. फेयर इनफ. तो डेली सीपीआर के हिसाब से इट इज बुलिश. सो व्हाट हैज हैपेंड इज, सी, अगर आप देख सकते हैं ये 5 मिनट का कैंडल है और डेली सीपीआर है. इसमें क्या हुआ ऑन 14th दिसंबर. कैन यू गाइस सी माय स्क्रीन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. तो ऑन 14th दिसंबर वी हैड अ कैंडल which opened between CPR and R1. ठीक है. सर ये किसी के बैकग्राउंड से बहुत आवाज आ रही है, प्लीज उनको बोलिए. अच्छा. तो we had a first candle opening between CPR and R1. तो हमने, हमारा रूल क्या था? चलो रूल बुक निकालते हैं. रूल बुक कहाँ है? ओके, रूल बुक. फर्स्ट तो ट्रेंड मालूम पड़ गया, ट्रेंड इज बुलिश. ठीक है, यस सर. ट्रेंड मालूम पड़ गया. अभी बुलिश ट्रेंड में फर्स्ट कैंडल बिटवीन सीपीआर एंड R1. तो एंड इट इज अ असेंडिंग सीपीआर. तो व्हाट यू हैव टू डू, बाई एट एवरी डिप टू पिवट और R1. ओनली फाइंड बाइंग अपॉर्चुनिटीज इन एवरी पुल बैक. ठीक है. तो क्या हुआ इधर डेविस लैब में? चलो देखते हैं डेविस लैब में क्या हुआ. अरे कहाँ गया डेविस लैब? तो डेविस लैब में यहां से यहां आया नीचे. दिस इज द पिवट लाइन. गया ऊपर, गया ना? Yes, sir. दिस वर्क्स इन आपका स्टॉक्स में. आइडियली यू हैव टू वर्क विथ, अगर 4,000 के काउंटर रहता है, 4,000 प्लस काउंटर्स में डेली सीपीआर वर्क्स फंटास्टिक. उसके नीचे इनफैक्ट 2,000 के काउंटर में भी वेयर हाई लिक्विडिटी इज देयर इट विल वर्क. बट एनी काउंटर विच इज लेस देन 1,000 रुपीज, उसका हाई लिक्विडिटी भी नहीं रहता है, तो सीपीआर डज नॉट वर्क. ठीक है, डिस्क्लेमर. तो देखिए इधर क्या हुआ. यू हैड अ रेड कैंडल इन द फर्स्ट कैंडल ऑफ 5 मिनट्स. You had a red candle, whatever, red or green doesn't matter, but it opened between R1 and CPR. तो any pullback is an opportunity to buy. तो ये नीचे आया तो वापस ऊपर गया, नीचे आया वापस ऊपर गया, एट पीवेंट नीचे आया फिर से ऊपर गया. अभी ये कल का सिनारियो क्या दिखा रहा है? अभी वी हैव स्टेप्स. करेक्ट, स्टेप्स दिख रहा है इधर. Yes. We have steps, which means it is a buying opportunity. समझ रहा है? तो if Yes, sir. it is a buying opportunity, what is our rule? Our rule is the closing should be above next day's CPR, which is there. It is matching ना. तो कल I am expecting a gap up opening in Davis Slab at 3,721. ठीक है, नोट करके रख लो. किसी को रिकॉर्ड करना है तो रिकॉर्ड कर लो, रिकॉर्ड करके देख लो. कल क्या होगा देख लेना. डेविस लैब विल ओपन गैप अप एट 3,725. ठीक है. ओके सर. हाँ, अगर इतना मालूम रहता तो मैं तो अंबानी को कर लेता ना. इसके लिए दैट इज द रीजन ऑन फर्स्ट कैंडल वी वेट फॉर द कैंडल टू क्लोज, बिकॉज वी विल नॉट नो व्हाट इज द ओपनिंग. That is the reason I gave you 3 concepts. Either it will open here, it will open here, or it will open here. ये तो ऊपर इधर तक ओपन तो हो नहीं सकता. मतलब इधर ओपन तो हो नहीं सकता. करेक्ट. तो फर्स्ट कैंडल जो है प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. समझ गए?
Yes, sir. So this was a live example. और कोई अगर stocks बोलना है तो that also you tell me, I will show you live. सर छोटे एग्जांपल, छोटे काउंटर पे भी हम इसको कर सकते हैं। छोटे ये तो बहुत बड़ा काउंटर काउंटर हो गया। छोटे काउंटर में स्टॉक, पेनी स्टॉक में नहीं कर सकते आप। ओके, लाइक बजाज हिंदुस्तान इज अराउंड 37-38। एक सेकंड, बजाज हिंदू लिक्विडिटी है ना इसमें? हाँ जी, लिक्विडिटी है तो कर सकते हैं। एक सेकंड दिखाता हूँ। ओके। बट सिंस इट इज आई टोल्ड यू 1000 रुपीज के नीचे वाला काउंटर के लिए आपको क्या करना है, वीकली सीपीआर यूज करना है। ठीक है, ओके सर, ओके। अभी इस काउंटर में नहीं चलेगा, ये तो चलता ही नहीं है। कहाँ लिक्विडिटी है यार, है ही नहीं लिक्विडिटी। वेन एवर यू फाइंड दीज काइंड ऑफ कैंडल्स ना, जी, दिस मीन्स इट डज नॉट हैव लिक्विडिटी। ओके 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 सर। इसमें है ना, इधर बाई हुआ है, इधर सेल हुआ है, इधर सेल हुआ है, इधर बाई हुआ है, ऐसे ये पिंग पोंग स्टॉक है। ओके ओके जब ओके भी आपको ऐसा कैंडल स्टिक दिखता है, हाँ जी, डोंट यूज सीपीआर। ओके सर। These are only for high fundamentally stocks, fundamental stocks, not a technical stock. ओके ओके सर, गॉट इट। और बोलिए, कोई भी एक स्टॉक पकड़ के बोलिए या फिर इंडेक्स में बोलिए, आपने कभी भी ये एक्सपीरियंस किया है, सीपीआर बहुत जने दिखते हैं। The stock option we need to use weekly CPR rather than daily CPR. Okay, yes, rather than daily CPR for counters which are below 1000 rupees, and it will for a weekly CPR you have to use a 1 hour candle। ठीक है चिरंजीव, किसने क्वेश्चन पूछा सर था? जस्ट टेक एन एग्जांपल ऑफ वेक्टर फूड। वेक्टर फूड, या वेक्टर फूड, वेक्टर, बी 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 वेक्टर, फॉर बॉम्बे। वेक्टर, मिसेस वेक्टर फूड। ओके, हाँ लिक्विडिटी नहीं है। नहीं है। लिक्विडिटी क्या है, चलो ठीक है, होता है। I'll tell you, see now what is the relation it has formed. This is what this relation is. What, let us check what is this relation. What was that relation? The result of this relation is sideways। ओके, साइड व्यू, ठीक है, जी। तो साइडवेज ही था ना ये तो। हाँ, कितना तो मूव हुआ है ये, 1137 से लगा के 1152, क्या तो मूवमेंट है ये। ना ही S1 आया, ना ही CPR आया, तो साइडवेज ही हो गया ना। हाँ, मतलब बिल्कुल। पूरा दिन अगर आपने इधर एंट्री लिया होता हम्म, तो क्या ही कमा लिया होता। और जनरली स्टॉक्स में आप 9:15 को तो एंटर करते नहीं हो, यू विल एंटर एट 10 नहीं, o'clock। बिल्कुल। तो यू वुड हैव एंटर्ड शॉर्ट पोजीशन एट 11:48, एंड जब तक 12 बज जाते, योर पेशेंस वुड हैव लॉस्ट योर पेशेंस। हाँ, तो ये स्पाइक डाउन भी आपने लिया नहीं होगा। नहीं लिया। हाँ, ठीक। Bro, what about 2 days back? Same thing 2 days back देखो। हाँ, तो देखो इधर क्या हुआ, वाइट सीपीआर है ना 2 days बैक। क्या Yeah, है, white CPR, सेम but सिनारियो still है ना, it is सेम सिनारियो है moved. ना, सेम Yeah, सिनारियो। same scenario, but it is moved to R2. In fact, R3. इट इज मूव टू R2, करेक्ट है, बट व्हाट हैज हैपेंड इज R1 के ऊपर है ना ये। तो व्हाट वाज माय सिनेरियो, एक सेकंड, लेट अस सी, होल्ड ऑन। सो व्हाट इज द रूल? हेलो, नो ट्रेडिंग डे नो ट्रेडिंग डे, ओके, बट उसके बाद में नहीं पढ़ा आपने। टिल R1 और S1 इज ब्रोकन। करेक्ट, तो व्हाट हैपेंड, R1 broke, it broke R1 R1 2 days back।
Okay, but in this case, the trend is not established, right? Because 2 consecutive days, you don't have ascending or descending CPRs. करेक्ट, ट्रेंड इज नॉट एस्टैब्लिश्ड, बट सिंस R1 के ऊपर अगर ब्रेकआउट है तो आप थोड़ी ना शॉर्ट ट्रेड लोगे R1 के ऊपर. रेजिस्टेंस, आई टोल्ड यू इट इज अ सपोर्ट और रेजिस्टेंस. तो व्हेन अ रेजिस्टेंस इज ब्रोकन यू विल टेक अ शॉर्ट ट्रेड. व्हाट विल यू टेक? So ideally, you wait for a trend. You look for the trend first, or do you just look for if it's a You should if it's broken R1? you should only technically see trend first. यहाँ Correct. पे Because even the यहाँ पे हुआ Davis है, lab, यहाँ पे हुआ है. even the Davis lab example, आपने वो trend पहले check नहीं करा, आपने you just directly showed कि मतलब अच्छा नहीं ये नहीं यहाँ अब, से ऐसे अच्छा गया ठीक हुआ. है ना, मैं बोलता हूँ ना आपको ट्रेंड, आपको बोलता हूँ. देखो इधर ट्रेंड आया, देखो इधर. दिस वाज अ डाउनवर्ड ट्रेंड, करेक्ट. Right. दिस वाज अ डाउनवर्ड ट्रेंड. फिर इट क्लोज्ड अबोव द नेक्स्ट डे सीपीआर, ठीक है, एंड देन इट ब्रीच्ड R1. व्हाट डिड आई टेल यू कि अगर डाउन ट्रेंड में व्हाट आर प्रोटेक्टेड एंड व्हाट इज ब्रीच्ड? S1 is breached, R1 is protected. So in any case, if R1 is breached, what happens to the trend? It changes. So, but you immediately Change your view say on that that. the trend is changed, Yes, or 100%. do you wait for another? No, or do you wait for another ascending CPR? I mean, to ascend. See, whenever what happens in this is, अगर आपका R1 ब्रेक होके ऊपर R1 के ऊपर ही क्लोज होने जा रहा है, समझो, ओके, तो समझ जाना कि यू विल ऑलवेज हैव अ असेंडिंग सीपीआर. मैथमेटिक्स, Right. इट विल बी अ मैथमेटिक्स Yeah, ओनली. yeah. तो जब भी R1 के ऊपर क्लोज होता है या फिर R1 के आसपास ही क्लोज होता है, तो इट इज ऑब्वियस कि नेक्स्ट डे यू विल हैव अ असेंडिंग सीपीआर. सो यू हैव टू डू अ बुल रन इन दिस. मैंने आपको जो माउंटेन हाइकिंग का जो एग्जांपल दिया है, ठीक है, ओवर दैट इज अ मार्केट स्ट्रक्चर बेसिकली. जरूरी नहीं हर टाइम है ना आपको फ्लैट ही आएगा, फिर इंक्लाइनिंग आएगा, फिर स्टेप्स आएगा. जब भी स्टेप्स भी आके इमीडिएटली डाउनवर्ड भी आता है, ठीक है. तो यू हैव टू अंडरस्टैंड ऑल दैट. इसके लिए मैंने रूल बुक में लिखा भी है कि R1 और S1 ब्रीच होता है. सो इट इज फर्स्ट आई मेड द प्लेटफॉर्म कि आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस, इट इज अ बेसिक थिंग कि अगर रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो यू हैव टू बाई, एंड अगर सपोर्ट ब्रेक होता है तो यू हैव टू सेल. ठीक है. और कुछ, और कोई स्टॉक्स पूछना है तो पूछिए, कोई इंडेक्स में देखना है तो इंडेक्स में देखिए, बिकॉज इंडेक्स इज वॉलेटाइल. इंडेक्स में आपको से दिखता है. Sir, this setup is only for intraday, right? ओनली फॉर इंट्राडे, ओनली फॉर इंट्राडे. And what would be time frame, sir? कोई भी टाइम फ्रेम लगा लो. दिस द लाइन 5 minutes. चेंज. Ideally, 5 minutes or 15 minutes. नहीं नहीं, योर लाइन्स विल नॉट चेंज. Okay. यू पुट 5 मिनट्स, यू पुट 15 मिनट्स, आई विल शो यू. वेट, ठीक है, ये लाइन है आपका, ये सीपीआर लाइन है, दिख रहा है आपको? चलो इधर इधर दिखाता हूँ. ये सीपीआर लाइन है, ठीक है. नाउ दिस इज 5 मिनट टाइम फ्रेम. लेट मी डू 1 मिनट टाइम फ्रेम. अरे आई हैड टू मार्क इट एक्चुअली, होल्ड ऑन, एक मिनट. 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आई विल मार्क अ जोन फर्स्ट. रुको, आई विल डू इट इन सेंसेक्स बिकॉज मेरे इसमें ड्राइंग में काफ़ी कुछ लाइंस है तो मर्ज हो जाएगा. एनीवेज लेट्स ट्राई. ठीक है, दिस इज अ सीपीआर. ठीक है, इसको येलो येलो को चेंज कर देते हैं. ये सीपीआर का है, ठीक है. इसको कर देंगे अपन द कलर विच आई डोंट लाइक. ठीक है, ओके. तो वी आर सीइंग 12th दिसंबर सीपीआर. ये सीपीआर है 12 दिसंबर इन अ 5 मिनट टाइम फ्रेम. ठीक है.
12 दिसंबर का CPR है ये, ठीक है। हमने 1 मिनट किया, ये जोन है, सेम है। Yes. मैंने 1 आवर किया, ट्वेल्थ दिसंबर सेम है। Yes. CPR will not change irrespective of your time frame if it is a intraday, मतलब डेली CPR। ऑब्वियसली आप इधर इधर 2 दिन का डालोगे तो आएगा ही नहीं वो, ठीक है। नाउ इंट्राडे के लिए 5 मिनट्स एंड 3 मिनट्स इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर वॉलेटाइल कैप्चर, ठीक है। And for highly liquid stocks, right, sir? हाईली लिक्विड स्टॉक्स, एग्जैक्टली। Just like Reliance or something. रिलायंस इज Reliance, नॉट एट ऑल HDFC लिक्विड। Bank, Kotak. रिलायंस में इतना मूवमेंट आता नहीं है। अब Okay. देखो ना, बजाज फाइनेंस देखो, बजाज हाँ, फाइनेंस, हाँ। बजाज फिनसर्व देखो, दीज आर माय फेवरेट स्टॉक्स, ठीक है। बजाज फिनसर्व है, यू हैव और कौन सा है भाई, ब्रिटानिया है। तो ये सब स्टॉक्स में अच्छे अच्छे मूवमेंट आते हैं। इनफैक्ट डेविस लैब इज आल्सो गुड, डॉक्टर रेड्डी, देन यू हैव मैं ज़्यादातर इंडेक्स में ही करता हूँ स्टॉक्स में। आई डू इट वंस इन अ ईयर ओनली, ओनली इन दिसंबर आई डू इन स्टॉक्स, बाकी पूरे साल में कभी नहीं करता हूँ, दिसंबर में ही करता हूँ। No, would it be possible for you to take Nifty and continue like say 2 weeks, yeah, 3 weeks, if you just show the approach as to how you would approach every day? Yes sir, so this is Nifty for you, ठीक है। Two weeks is, when do we start? We start from 1st December or 30th November? When do we start? Anything is fine, up to you. Okay, so this was a consolidation zone, ठीक है। Let's start from this, क्या हुआ यहाँ पे। ये सब लेवल्स क्या है यार, I don't know why these are price gaps, okay, anyways, ठीक है। सो इधर क्या हुआ, whatever trend had, समझो वी आर न्यू, वी जस्ट स्टार्टेड टुडे, ठीक है। एंड ऑन 22nd नवंबर वी स्टार्टेड, ठीक है। वी डोंट नो हाउ टू इंटरप्रेट कल प्रीवियस ट्रेंड, आई हैव नॉट नोन, आई विल सी व्हाट विल हैपन नेक्स्ट, ठीक है। आई एम नेगेटिंग वॉट एवर हैपन प्रीवियस, आई विल स्टार्ट फ्रॉम डे 1, स्टार्ट फ्रॉम 22nd नवंबर, ठीक है। So in this scenario, my relationship day 1 is 22nd, 22nd I will see whatever price movement has happened, ठीक है। Then I will see on day 2, because I need to have 2-day relationship in CPR। तो अभी day 2 में क्या हुआ, you had a engulfing, क्या था ये, what was the rule, कहाँ गया रूल, so we had, कौन सा ट्रेंड था वो तो छोड़ दो, बट एनगल्फिंग, वी हैड एनगल्फिंग CPR बट वाइड, ठीक है। तो रूल क्या है, R1 और S1 जब तक ब्रेक नहीं होता है तब तक हम ट्रेड नहीं करेंगे, दैट वाज द रूल, ठीक है। तो इधर क्या हुआ, सो R1 ब्रेक किया फर्स्ट कैंडल में, R1 ब्रेक किया, तो लेट अस सी अगेन इन दिस रूल बुक, R1 ब्रेक किया भाई फर्स्ट कैंडल,
so which is above CPR and गाइज मैं टैब्स चेंज कर रहा हूँ तो आई थिंक यो आप देख रहे हो, ठीक है। बिटवीन CPR एंड R1 पे क्लोज हुआ है तो आई डोंट नो विच व्हाट इज द रिलेशनशिप इज बेसिकली एनगल्फिंग बट वाइड, करेक्ट, दिस इज द रिलेशनशिप राइट, डे 2, तो इट इज एनगल्फिंग बट वाइड, so what I will do, I will buy above R1 or else I will not trade, ठीक है, that is my rule for the day. So what I will do, I will buy above R1 यहाँ पे है, R1 यहाँ पे है, I bought, इधर तक आया है, वो टारगेट के लिए I actually give it in some other class, टारगेट छोड़ दो बट देयर वाज अ स्पाइक हियर, ठीक है, और कितने पॉइंट का स्पाइक था यहाँ पे, अगर बाई किया होता आपने तो आपका स्पाइक वाज क्लोज टू अबाउट 25 पॉइंट्स, ठीक है। फिर पूरा दिन साइडवेज था, इट ओनली मूव्ड इन 30 पॉइंट रेंज एंटायर डे, R1 को ब्रेक करने के बाद नीचे आया लेकिन इट मूव्ड इन 30 पॉइंट रेंज, सो साइडवेज मार्केट था, ठीक है। सो साइडवेज मार्केट था, देन वी हैड अ असेंडिंग CPR, बट असेंडिंग CPR में भी क्या हुआ, बुलिश ट्रेंड के लिए अपने को क्या देखना है, कैंडल हैज टू बी आइदर अबोव द CPR और बिलो द CPR, बिलो द CPR फॉर बेरिश ट्रेंड में कैंडल विल क्लोज बिलो द CPR, यहाँ पे क्लोज होता है बेरिश ट्रेंड में, अप ट्रेंड में यहाँ पे कैंडल क्लोज होना था, इनफैक्ट इट हैज क्लोज्ड हियर, सो स्टिल द ट्रेंड इज नॉट एस्टैब्लिश्ड, ठीक है। एक मिनट रुको, आपको लगेगा कि होने के बाद बताता है तो चलो ठीक है, ऐसे बताता हूँ, अरे लेकिन वो कैंडल मालूम नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसमें एनीवेज यहाँ पे असेंडिंग CPR है, तो आई जस्ट टोल्ड यू कि कैंडल इधर क्लोज हुआ है तो इट इज गोना बी अ क्या बोलते हैं, साइडवेज मार्केट, ठीक है, बिकॉज ट्रेंड इज नॉट एस्टैब्लिश्ड येट। नाउ देयर इज अ डिसेंडिंग CPR, okay, now there is a descending CPR, we have to see whether the candle has closed here or not, candle has to close here, if candle closes here in this point, I will establish that it is a bearish trend, okay, ठीक है, I have not seen the candle yet, so candle closed here, so it has to be a bearish trend, ठीक है। so now bearish trend में नेक्स्ट डे मार्केट क्या हुआ, मार्केट इधर खुला, ठीक है, तो इट ओपन बिटवीन दिस, सो लेट अस सी इन अवर रूल बुक, क्या बोलता है रूल बुक, सो ट्रेंड हम एस्टैब्लिश कर रहे हैं बेरिश ट्रेंड, क्योंकि मार्केट क्लोज हो गया है नीचे और CPR भी नीचे ही था, असेंडिंग CPR था ना, हाँ डिसेंडिंग CPR एंड कैंडल क्लोज्ड, सो टू ऑफ आवर रूल्स हैव मैच्ड, तो क्या सिनेरियो है आपका, बिटवीन CPR एंड R1 डिसेंडिंग CPR है, सिनेरियो 1 सेल एट R1 फॉर द टारगेट ऑफ CPR, दिस इज द सिनेरियो 1, ठीक है। तो लेट अस सी व्हाट हैपेंड, so this was R1, so we sold at R1 here and our target was CPR, आया नहीं आया, गाइस आया नहीं आया, Yes. आया सर आया। है ना, ठीक है। तो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन कि ट्रेंड कैसे एस्टैब्लिश करते हैं, ठीक है, तो ये तो इंट्राडे में एक बार हो गया, अपना प्रॉफिट हो गया इधर, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अगर नेक्स्ट अपना सिनेरियो क्या था, पिवट लाइन के नीचे भी जाएगा तो S1 जाएगा, ठीक है, दैट वाज आवर सिनेरियो, बट पिवट लाइन को तो ब्रेक किया नहीं इसने, इसने क्या किया, इधर का सपोर्ट लेके, पिवट का सपोर्ट लेके इट वेंट अप, ठीक है, म्यूट कर दीजिए प्लीज, ओके थैंक यू, ठीक है। सो क्या हुआ उसमें, ऊपर चला गया,
ऊपर जाने के बाद अपने को मालूम है कि अगर R2 के ऊपर भी अगर जा रहा है तो नेक्स्ट डे CPR विल बी असेंडिंग. मैथमेटिक्स बेसिक कैलकुलेशन, obviously it's going to be ascending. So we have to look for the candle closing. तो कैंडल कहाँ क्लोज हुआ? असेंडिंग CPR आया, तो we have closed here. So my view is bullish. ठीक है, बुलिश हो गया. फिर मैं 9:15 को आके सी ऐड नहीं किया. आई वेटेड फॉर द फर्स्ट कैंडल टू ओपन. ओके, तो फर्स्ट कैंडल कहाँ ओपन हुआ? ओपन एट between R1 and R2. So what did I tell you? जब भी between R1 and R2 we have established the trend as bullish, between R1 and R2 खुलता है, तो you have to just name R1 as CPR and R2 as R1. तो between this in ascending CPR आ गया, बुल ट्रेंड हो गया R2 के ऊपर. तो let us see what is our rule book says. Our rule book says हमने ट्रेंड बुलिश किया है. CPR और R1 मतलब R2 और R1 के बीच में खुला है. बाई एट एवरी डिप at pivot or R1, only find buying opportunities in every pullback. ठीक है, that is our rule. So you had a pullback here. अच्छा सॉरी, दिख नहीं रहा है आपको. हाँ चलो. So you had a pullback here, you buy. So you see there is a higher low which has been formed every time. ठीक है, again it closed above R3. So we confirmed that it is a next day CPR will be ascending. So we are still in bull run, and this candle closing also confirms that it is a bull run. ठीक है, तो when this candle also confirms, अपना रूल क्या है? If CPR और R1 के बीच में खुलता है तो we will only find नहीं रुक बता देता हूँ चुप के बाद में उसके लिए करेंगे. रुको. हाँ, so ascending CPR between CPR and R1, buy at dip to pivot, only find buying opportunities in every pullback. So you have to only think of C trade. C trade के लिए आपने pivot पे आया, pivot पे you enter, you got this points. Again pivot पे आया, फिर से ऊपर गया, फिर से pivot पे आया, फिर से ऊपर गया. तो bull run start, still the same philosophy. कैंडल ऊपर क्लोज हुआ, ascending CPR है, what you do? You buy. अभी इधर क्या है? कैंडल closed at CPR, so it will be the same. It will be the same as ascending, because obviously R2 के ऊपर है, तो it will be ascending only. तो next day opening candle देखना है कहाँ है? Opening candle opened somewhere here between R5 or R4 or something. तो इसमें भी क्या था? I don't think you would have traded in this. इतना ऊपर जाने के बाद कौन ट्रेड करता है? समझ गए? I hope समझ में आ गया होगा. कंटिन्यूस फ्रॉम 22 नवंबर से 4 दिसंबर तक का आपको दिखा दिया. ओके, हेलो, जिसने भी क्वेश्चन पूछा था ये, आई होप आई हैव आंसर्ड इट. सचिन भाई, सचिन जैन, आई थिंक आप दोनों में से कोई क्वेश्चन पूछे थे लगता है. Yes sir. हाँ, तो आई थिंक आई हैव आंसर्ड इट satisfactorily, or you still have doubt? I can still tell. No sir. Understood. जैन साहब, सचिन जैन साहब. Yes sir, बोलिए. हाँ, तो आई होप आंसर आपको मिला होगा. Yes. No, going really good. हाँ, एक्चुअली योर किसने ये क्वेश्चन पूछा था? एनीवन who asked me? Ramesh here. Yeah. Sorry, I was just about to ask you. Yes sir, please tell me. How do we? You're right. When the first opening candle, we can decide. So what was the? How do you set the stop loss and the target? That is for another class, sir. Paid class. Okay. Thanks.
ठीक है, और कोई क्वेश्चन है तो पूछिए। सर मार्केट खुलने पे फर्स्ट 5 मिनट्स का कैंडल के लिए वेट करना है, राइट? हाँ जी, कंप्लीट 5 होने के मिनट्स। लिए। आपको इंट्राडे ट्रेड करने के लिए 5 मिनट्स कैंडल ही बेस्ट है। हाँ, ओके ओके। हेलो। हाँ जी, या आई वाज द वन जिसने बोला था वो 15 डेज का 2 वीक्स का हाँ जी, तो आप निफ्टी का हाँ या वैभव जी, ठीक है। तो आई होप यस आई वाज satisfactorily I told you the answer. Otherwise, अगर आपको स्टिल डाउट है तो पूछ लीजिए। आई एम ओके। नो ठीक है आई अंडरस्टैंड एक्चुअली सो ओके माय पॉइंट इज so all this is an introductory class towards a paid class, right? It is an introductory class, not for a paid class. It is an introductory class for you to understand what is CPR. Yeah, but like just now one gentleman asked something About about stop SL. loss and target. Yeah. Yes, So now for if you which tell me, अगर आपको रूल बुक मैं जो फ्री में देने वाला हूँ, रूल बुक से आपको समझ में आ जाएगा कि क्या ट्रेंड है, करेक्ट? no so ट्रेंड आने के बाद no आपको my सी आई टेल यू, आई अंडरस्टैंड वैभव जी, आई अंडरस्टैंड। सी जो भी मैं सिखा रहा हूँ, फर्स्ट इज यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपका ट्रेंड आपने अगर एक बार एस्टैब्लिश कर दिया मार्केट में, तो यू कैन विन एनी ट्रेड, यू कैन विन एनी ट्रेड। बोलते हैं ना, व्हेन यू गो विद द ट्रेंड यू एनीवेज रीच योर डेस्टिनेशन। इफ यू गो अगेंस्ट योर ट्रेंड देन देयर इज अ प्रॉब्लम। no so I understand all that. हाँ, So I'm coming back to my question wherein so this is all towards a paid class, right? no, not at all, not at all. I'm not asking you guys to pay, I'm also not even disclosing my course here. No, Harshit bhai, he got actually confused with that question. Someone asked about how about the entry and stop loss. We हाँ, told that it will be coming in the next classes, so that the whole matter won't be too big to understand, to digest actually for us. That is see, what Harshit meant. मैंने अभी तक मेरा कोर्स लॉन्च भी नहीं किया है, विच इज़ अ पेड कोर्स ऑफ कोर्स, बट मैं वो प्रमोट भी नहीं कर रहा हूँ। अगर इफ नहीं दिस क्लास वाज टू मेक यू understand the next course for a paid course, it is not. Of course there is a motive behind this class. The motive is that you understand the concept, one. Second motive is, agar I need to not agar, sorry, i I need my subscribers to grow with word of mouth. I need my telegram channel to grow. That's the second motive. Third motive is live trading. In live trading I do free of cost. उसमें आप देखो, उसमें कन्वर्जन होता है, मेरे को वहां पे मेरा बिजनेस होता है, और कुछ नहीं है। दिस क्लास जिसको अगर समझना है, खाली कॉन्सेप्ट समझ सकते हो, देर आर लॉट ऑफ यूट्यूब चैनल्स हु आर ऑल्सो टीचिंग दिस कॉन्सेप्ट, but nobody will tell you SL and entry, because one, it is against the SEBI laws. I'm not supposed to tell you SL and entry points, but I can tell you the trend and what will happen, the rule book of trend. fine, but the basic thing being, okay, suppose if you're taking the trade at say R1, okay, so the basic thing would be to place your SL below the CPR, right? Yes, you're right, 100% Correct. right. Yeah, so that is the question that the other gentleman asked, for which you were like, you did not give the answer, and you said ki that is for another class अच्छा, नहीं, or a paid one. So that is where my रमेश जी से मेरी कल बात हुई थी इसके लिए। okay, ठीक है, fine. yeah. So anything else you want to understand, पूछना है? Sir, there are so many indicators like Bollinger Bands and other things which does not work all the time. So does it apply to CPR as well? It works 80%, 70%, or it works 100%? See, nothing is 100%. ठीक है? Why nothing is 100% in our market is because our retail investors are what, 15% of the entire population.
जो मार्केट Yes. पार्टिसिपेंट्स है, मार्केट पार्टिसिपेंट्स आर 15%. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पॉपुलेशन, आई एम टॉकिंग अबाउट मार्केट पार्टिसिपेंट्स. तो रिटेलर्स कितने हैं? 15% है. बाकी सब कौन है? ऑपरेटर्स है. इट इज द उल्टा इन यूएस मार्केट. हियर ऑपरेटर्स ज्यादा है, ब्रोकर ज्यादा है, हाई वॉल्यूम पीपल आर मोर. सी, अगर आप मैं सीपीआर डालूंगा IREDA स्टॉक में, ठीक है, जो कल 10% गिरा, अगर मैं उसमें सीपीआर डालूंगा, वो सीपीआर तो बुलिश ही दिखा रहा था मेरे को. बट व्हाट हैपेंड? 5,000 crores ऑफ स्टॉक वाज डंप्ड ओवरनाइट. तो इसके लिए 15% गिर गया. हाँ, तो दिस सीपीआर कॉन्सेप्ट वर्क्स 100% if you have 85% of retail participants. अपने मार्केट में ये काम 80% करेगा. मतलब आपको समझना है कि सीपीआर से है ना, कहाँ पे आपको बाई करना चाहिए, कहाँ पे सेल करना चाहिए. इतना समझ Okay. लिया ना आपने कि सी ऑलवेज बोलते हैं ना कि बहते हुए पानी के अंदर जैसा जा रहा है वैसे जाओ. ट्रैवल विद फ्लो ऑफ द वाटर. डोंट डोंट गो अगेंस्ट इट. अगेंस्ट इट क्या होता है? You will put a lot of energy. Your energy will be lost. You might not reach your destination on time. You might or you might not also, or you will be thrown away by the tide. समझ गए ना? Yes, yes. तो आपको सीपीआर मदद करेगा वो टाइड समझने के लिए. Right, sir. Bro, for how long have you been using the CPR, in fact, trading using this concept? दिस कॉन्सेप्ट हो गया मेरे को, पहले ट्रेडिंग व्यू में 7 years हो गया. 6 years हो गया. आई डोंट रिमेम्बर द टाइमिंग. बट मेरे को, मैं मैन्युअली करता था ये सीपीआर का. आई यूज्ड टू ड्रॉ मैन्युअल लाइंस आफ्टर लेमन ब्रदर्स क्रैश. या आफ्टर दैट, करेक्ट. हेलो. हर्षित भाई, क्वेश्चन. हाँ जी इमरान भाई. यस सर. या डाउन ट्रेंड में अगर वाइट सीपीआर है, डाउन ट्रेंड में अगर वाइट सीपीआर, लेट्स टेक आउट द रूल बुक. या बैंक निफ्टी डाउन ट्रेंड. सो यू हैव एस्टैब्लिश्ड द ट्रेंड एज बेरिश. यस, ठीक है, यू हैव एस्टैब्लिश्ड द ट्रेंड एज बेरिश. वाइड सीपीआर है. व्हाट इज द रिलेशन? सीपीआर का रिलेशन क्या है? वाइट सीपीआर साइडवेज मार्केट होता है, ओनली ब्रेकडाउन ऑफ S1 नहीं 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 स्ट्रिक्टली. नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं देखते हैं. आपने ट्रेंड एस्टैब्लिश कर दिया, आपने बोला डाउन ट्रेंड है, ठीक है, यस, डाउन ट्रेंड. तो डाउन ट्रेंड है करके आपको मालूम पड़ गया. वाइड सीपीआर नेक्स्ट डे का सीपीआर है, ठीक है. राइट. तो जो नेक्स्ट डे का सीपीआर है, वाइड सीपीआर है, वो नीचे है, जो आज का सीपीआर से नीचे है, या फिर उसको लग के है, या फिर उसके नीचे क्या है? नीचे है, कंप्लीट नीचे है, ठीक है. हाँ. तो इट इज अ डिसेंडिंग सीपीआर. राइट. ठीक है. तो व्हाट इज, देयर आर टू सिनेरियोस. अभी दिस इज अ डिसेंडिंग सीपीआर. आपने रिलेशन समझ गए कि वो डिसेंडिंग सीपीआर है, ठीक है. अभी मेरे को बताओ फर्स्ट कैंडल कहाँ खुला? मे बी इन बिटवीन सीपीआर एंड प्रीवियस डे लो. प्रीवियस डे लो एंड सीपीआर. बेरिश ट्रेंड में सीपीआर एंड प्रीवियस डे लो. एक सेकंड. बेरिश ट्रेंड में, हाँ, बिटवीन सीपीआर एंड प्रीवियस डे लो. तो डिसेंडिंग सीपीआर आपने रिलेशनशिप फाइंड आउट कर लिया. डेज कैंडल क्या हुआ? बिटवीन सीपीआर एंड S1 के बीच में खुला. तो सेल एट एवरी राइज टू पिवट. ओके. ओनली फाइंड सेलिंग अपॉर्चुनिटीज. ओके. अभी मेरे को बताओ ये कौन सा दिन था? मैं इस चार्ट में निकालता हूँ. मैंने तो देखा नहीं, आपने आपके हिसाब से बोला. हाँ हाँ,
हाँ तो But maybe chat नहीं दिखा, but I have a question on this. Why? Because I used to give number of SLs for this type of trades. अच्छा, बार बार SL हिट हो रहा था, CPR तक जा रहा और CPR क्रॉस नहीं कर रहा, बट अगेन आई वाज इन तो बुल जब मोड, आई मीन जब आपका ट्रेंड ट्रेंड बेरिश है और वो सीपीआर हाँ तक जा रहा था तो सीपीआर क्रॉस नहीं कर रहा था, सीपीआर क्रॉस करेगा तो वो तो बुलिश हो गया ना। हाँ, तो CPR तो वही वेर क्रॉस यू नहीं गिविंग कर अगेंस्ट द ट्रेंड का कॉल्स दोगे तो फिर स्टॉप लॉस मारेगा। रहा। यस यस, तो मैं whenever there is a white CPR and candle opens here at CPR you should sell, हाँ हाँ, you should not buy। यस यस, दैट इज द मिस्टेक आई डिड। व्हाई? हाँ बिकॉज सडन 100 पॉइंट्स कैंडल आ जाता है की बार। हाँ, क्यों आता है? बिकॉज द ट्रेंड वाज बेरिश, देन एट हाँ, सीपीआर उसको रिजेक्ट मारना ही है। राइट राइट, आप जब सी लोगे यू आर गोइंग अगेंस्ट द टाइड। यस यस, सिंपल कॉन्सेप्ट समझ गया? तो आपको है ना रूल बुक कैसे फॉलो करना है मैं आपको बताता हूँ। ओके, रूल बुक को फॉलो कैसे करना है? सिंपल है। फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड द ट्रेंड। जैसे आपने राइटली बोला कि बेरिश ट्रेंड है, बेरिश ट्रेंड में नीचे वाइट सीपीआर आया, तो जो सेकंड पार्ट ऑफ दिस सेंटेंस है ना, वाइट सीपीआर आया, तो यू हैव टू राइट, अंडरस्टैंड कि वो वाइट सीपीआर में व्हाट इज द रिलेशन ऑफ दैट विद द प्रीवियस सीपीआर, उसके पहले वाला सीपीआर। राइट, यस, तो नीचे है या उसको लग के है या उसको सेम सेम लेवल पे है या फिर वाइड होके उसको पिछले वाले को खा रहा है या एकदम छोटा है और वो पिछले वाला इसको खा रहा है, वो आपको समझना है। राइट, द मिनट यू अंडरस्टैंड दैट रिलेशनशिप, ठीक है, देन व्हाट यू शुड सी द फर्स्ट कैंडल। ओके, जैसे ये फर्स्ट कैंडल कहाँ पे खुलता है, whatever is the closing of that first candle, it doesn't matter. Whatever is the closing, whatever is the color of that candle, it does not matter. Whatever size of that candle, it will not matter. Even if it is a doji candle, it will not matter. ओके, ठीक है? You have to follow this. What you have to Okay. follow? जब भी पिवट तक आता है सेल करो, राइट, जब भी S1 को ब्रेक करता है सेल करो। बस उस Right. दिन है ना, उस दिन अगर आपने एस्टेब्लिश कर दिया बेरिश ट्रेंड है, आपने एस्टेब्लिश कर दिया डिसेंडिंग सीपीआर है, आपने एस्टेब्लिश कर दिया कि फर्स्ट कैंडल सीपीआर और S1 पे आ गया, यू शुड नॉट इवन ओपन सी चार्ट, यू शुड ओनली सी पी चार्ट, राइट, राइट, यू शुड नॉट ओपन सी चार्ट एट ऑल। ओके, सिंपल। यस यस, गॉट इट अर्शद भाई। हाँ जी, मेरा थोड़ा बोलने का तरीका रूड लग सकता है बिकॉज आई कम फ्रॉम अ विलेज वेयर what how we speak looks as if we are fighting, but I'm so sorry, that is how we speak। ठीक है? नो, ऐसा ही है तो दिमाग में ज्यादा घुसता है। नहीं नहीं मैं थोड़ा वैसे ही हूँ। यस सर, यू विल गेट दिस प्रेजेंटेशन, सबको ईमेल आईडी पे भेजेंगे, माय ऑफिस विल सेंड इट टू यू। ठीक है, वी विल सेंड इट टू यू ऑन मंडे, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। आपके सारे ईमेल आईडी पे, अगर किसी ने ईमेल आईडी नहीं भेजा है तो मतलब जो फॉर्म फिल किए हैं उनके ईमेल आईडीज पे मिलेगा, और जो फॉर्म फिल नहीं किए हैं उनको दे हैव टू सेंड मी द ईमेल आईडी, सो व्हिच आई विल फॉरवर्ड इट टू माय ऑफिस एंड दे विल सेंड इट। और कुछ है गाइस? बताइए, और कुछ है तो? किसी को समझ में नहीं आया, कुछ और है? सीपीआर है ना, क्या आपको क्या सिखाता है मैं आपको बताता हूँ। आपने किसी ने इधर पोकर खेला है? पोकर या आई डोंट नो, तीन पत्ती और पोकर सेम होता है पता नहीं मेरे को, बट अगर किसी ने पोकर खेला है, CPR. हाँ जी, ठीक है, तो सीपीआर क्या करता है पोकर में है ना, द प्लेयर उसको मालूम रहता है, ठीक है, कि कब उसको फोल्ड करना चाहिए, कब उसको शो करना चाहिए। करेक्ट, फोल्ड और शो दो ही होता है ना उधर,
और क्या होता है? कुछ होता है? फोल्ड और शो ही होता है ना पोकर में। तो वो प्लेयर को मालूम रहता है कि कब करना चाहिए करके, ठीक है। तो सीपीआर एग्जैक्टली आपको वही बताता है कि कब आपको फोल्ड करना चाहिए और कब आपको शो करना चाहिए, ठीक है। समझ गए? Yes, yes. सुपर। और कोई क्वेश्चन है तो बताइए, पूछिए, बिंदास से पूछिए। There are many types of CPR in indicators. Which one will we use? You joined late. मैंने डाला हुआ था सवेरे मॉर्निंग। देखो, this one you have to use. ठीक है। Guys, any other questions? मेरे को तो लगा तो कि आपके पास बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे। सर बजाज फिंसर्व पे लगा के दिखाइए ना थोड़ा। Bajaj Finserv. Let's put Bajaj Finserv. चलो, बजाज फिंसर्व कहाँ है? Finserv. अरे पोजीशन होल्ड करके रखा है क्या? हाँ ज्यादा नहीं, 1 लॉट बाय। ठीक है ना। तो बेसिकली क्या किया है इसने, R1 को टच ही नहीं किया है, ठीक है। ये बुल ट्रेंड में था। एक सेकेंड, ये बुल ट्रेंड से होते हुए प्लेटफॉर्म में आने के बाद बेरिश ट्रेंड न्यूज बेस्ड रहेगा ये मोस्टली। ऑन 13 दिसंबर कुछ न्यूज आया होगा इसके लिए, ऑन 13 एंड 14 दिसंबर कोई न्यूज बेस्ड की वजह से ऐसा फॉल आया है इसमें। क्योंकि फॉल और अपमूव है ना, एक दिन में कभी ऐसा आता नहीं है, ये न्यूज बेस्ड के हिसाब से ही आता है, ठीक है। तो फॉल इज बिकॉज उनका जो ऑनलाइन लोन्स का कुछ तो था ना, वो डीएक्टिवेट किया। हाँ, सी आई टोल्ड यू, मेरे को तो मालूम भी नहीं था, मैं तो खाली चार्ट देके बोल दिया कि दिस फॉल वुड हैव कम बिकॉज ऑफ न्यूज बेस्ड, बिकॉज इट वाज इन अ बुल ट्रेंड, ठीक है। इट वाज इन अ बुल ट्रेंड एंड प्लेटफॉर्म था विच वाज अ इंक्लाइनिंग प्लेटफॉर्म, नॉट अ डिक्लाइनिंग प्लेटफॉर्म। तो टेक्निकली इट हैड टू गो अप, बट दिस, ये इक्वेशन बड़ा बिगाड़ दिया। अभी न्यूज बेस्ड है तो कोई इंडिकेटर काम नहीं करेगा यार, दैट वी कांट डू एनीथिंग अबाउट इट। बट करंटली इट इज स्टिल इन बुलिश ट्रेंड, ठीक है। वी हैव टू सी कल का ओपनिंग। साहब अगर कल है ना 1742 का ब्रेकआउट मिलेगा ना तो ही ऊपर जाएगा, और नहीं दिया, फर्स्ट कैंडल अगर इधर खुला ना, if it opens somewhere here, it will go to it, if the first candle opens between 1738 to 1735, it will go and touch 1743 and it might come back, ओके ठीक है। Now why did I tell you it might come back? You know why? ये रेजिस्टेंस R1। नहीं, हाँ R1 तो रेजिस्टेंस है, करेक्ट है, बट हर रेजिस्टेंस बुल रन में हर रेजिस्टेंस को तोड़ता है ना वो। Why I told you? Because
We cannot establish a trend right now because it closed at CPR, the next day CPR. तो जो मंडे का क्लोजिंग है ना, वो इसका ट्रेंड डिसाइड करेगा, मंडे का क्लोजिंग। Okay. ठीक है, डोंट कंसिडर दिस पीडी क्लोज बिकॉज दिस इज अ पोस्ट क्लोजिंग, पोस्ट मार्केट क्लोजिंग। कंसिडर द कैंडल क्लोजिंग। ठीक है, तो मंडे का क्लोजिंग विल बी मोस्ट इंपॉर्टेंट। याद दिलाना लाइव पे, तो मैं बताऊंगा आपको एट 3:15। Yes, sir. ठीक है, और कुछ गाइस? सर आपको लाइव पे कैसे ज्वाइन कर सकते हैं? आप उसके लिए ना, यू विल हैव टू ज्वाइन मी ऑन माय टेलीग्राम चैनल, फ्री Okay. ऑफ, वो भी फ्री Okay, ऑफ sir. कॉस्ट ही है। टेलीग्राम चैनल पे Okay. मैं लिंक पोस्ट करता हूँ। अभी मैं ठीक है सर। इंडिविजुअली तो डाल नहीं सकता ना लिंक कहीं पे। जी जी। हाँ, बट टेलीग्राम लिंक पे मैं पोस्ट करता हूँ, लिंक पोस्ट करता हूँ। ओके सर, ओके। ओके, और कुछ गाइस? चिराग, यू हैव एनी क्वेश्चंस? सीपीआर? विक्रम, क्रेजी विकू, यू हैव एनीथिंग? ऋषि भाई? No, sir, not yet. समझ में आ गया आपको? Yes. हाँ, आप तो धुरंधर हो सीपीआर के। Arshit bhai, one more question. हाँ इमरान भाई, बोलिए ना। In any given trading sessions, अगर एक कैंडल किधर भी ओपन हो, CPR को टच करना ही होगा क्या? और दैट कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड एज अ मैग्नेट सीपीआर। सीपीआर एक्ट्स एज अ मैग्नेट करके बोलते हैं उसको। दैट इज अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट ऑल टुगेदर। देयर इज नो रूल एज सच कि कहीं पे भी खुलेगा सीपीआर को टच करना ही है करके, ऐसा कोई रूल है नहीं सर। okay, why? Because if it is opening at S1, again it is taking support and going to CPR. Even if it is at R1 or R2, it is coming back. Once it is rejected, it is coming back to CPR. Yes, that is because the relationship which is there between the today's CPR and yesterday's CPR. Okay. Okay, so that is called as a ping pong level. ठीक है, S1 से लगा के CPR तक जाता है, CPR को ब्रेक करता है, R1 जाता है, R1 से वापस CPR पे आता है, CPR से वापस S1 पे आता है। करेक्ट? Yes. This happens when your there is a flat platform, मतलब पिछले का engulfing रहता है CPR। Okay. And we think कि engulfing CPR में there is a big movement which will come. कोई movement नहीं आता है engulfing CPR में till R1 and S1 is breached. हाँ. Yes. सर एनगल्फिंग CPR पे तो 2 दिन साइडवेज ही रहता है ना? हाँ एग्जैक्टली सर, यू आर राइट। मैं बोला ना आपको, आप तो धुरंधर हो करके। यू आर 100% राइट सर। एनगल्फिंग सीपीआर में 2 दिन साइडवेज ही रहता है। लाइक मतलब जिस दिन एनगल्फिंग रहा, हाँ, उस दिन साइडवेज, मतलब 2 दिन छोड़ी दो, फिर तीसरे दिन ट्रेंड आएगा। हाँ, यू आर 100% राइट सर। 2 दिन छोड़ी दो, तीसरे दिन ट्रेंड आएगा। बट 2 दिन में भी कभी कभार ट्रेंड आता है। कब आता है? R1 और S1 ब्रेक होता है तब। ठीक है, बट उसमें भी एक ट्रिक है। प्रीवियस डे हाई एंड प्रीवियस डे लो का डिस्टेंस देखते हैं, तो वो मैंने कवर नहीं किया है इसमें अभी तक मैंने बहुत कुछ कवर नहीं किया है यार। हाँ वही। हाँ, जो अभी है इसमें बहुत कुछ है। यू हैव CPR, आई ट्रेड CPR यूजिंग EMAs, SMAs. I also use footprint charts. I also use smart money concept. तो बहुत कुछ करता हूँ CPR के साथ में। बहुत छेड़खानी करते रहता हूँ मैं CPR के साथ। So can we expect a follow-up session for this one? You need a follow-up.
I did not understand. I'm so sorry. Follow up session का मतलब क्या होता है? Same repeated session? No, extension of CPR. Extension of CPR. Yes, sir. I will do it one. I'll do one. Okay. But किसी को लगा कि कुछ डिफरेंट है फ्रॉम योर रेगुलर इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग जो सब इंडिकेटर बेचते हैं या फिर प्राइस एक्शन Yes. दिखाते हैं आपको? हाँ? Very informative, Harshit bhai. Thanks a lot for this session. अरे नो वरीज. आपने यू यू एंजॉयड इट, यू अंडरस्टूड, दैट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट, देन माय गोल इज अचीव्ड. अगर आपने सी आई ऑल्सो टोल्ड यू फर्स्ट कैंडल के बाद अगर वो रेड है, ग्रीन है, हैमर है, डोजी है, कुछ भी हो, वो उधर जाना ही है उसको. इट हैज टू फॉलो दैट रूल. ठीक है? Yes, yes. इट विल फॉलो. दैट इज माई at least trading with these non calculated, मतलब मैंने पर्सनली कैलकुलेट नहीं किया उस उसके ट्रेडिंग ईयर्स के हिसाब से, दिस इज विच इज क्लोज टू अबाउट 7 to 8 years. उसके एक्सपीरियंस से मैं बोल रहा हूँ कि वो रूल बुक मैंने जो बनाया है ना, आपको कोई ऐसा रूल बुक देगा नहीं. ये जो हाँ rule हाँ, book बनाया है ना, वही है जो अगर सीपीआर नेक्स्ट डे सीपीआर डाल दिया तो रूल बुक खोल लिया तो एक ही होगा हाँ वो दिन का. हम्म, As per that we can trade. you can see my objective is I can tell you कि where the tide is, कहाँ हाँ, तक जा सकता है, उतना मैं बता सकता हूँ. राइट राइट. और इस बेसिस पे ही मैंने ये प्रिडिक्शन किया था. आई डोंट नो कितने जनों ने ये सुना था, नहीं सुना था. दिस इज अ 14th December at 5:30 आई हैड डन द प्रिडिक्शन बेस्ड ऑन दिस कि कहाँ पे जाएगा, ऑन 15th कहाँ पे जाएगा करके. ठीक है? इनफैक्ट 47,900 से लगा के 47,000 मैंने ये डाला था कि इस जोन, ये जोन डाला था मैंने, 940 का जोन है. ठीक है? तो ये जो इस जोन का ब्रेकआउट चाहिए अपने को. तो मैंने क्या बोला था कि इस जोन का ब्रेकआउट मिलेगा तो ये जोन का ब्रेकआउट मिलेगा, विल वी विल एंटर इन सी फॉर द टारगेट ऑफ 48,160. ठीक है? ठीक है, लेवल्स याद रखिए. 48,000. दिस इज अ 200 पॉइंट मूवमेंट. ओके? तो मैंने क्या किया था, मैंने इनफैक्ट जो लाइव में थे सबको मालूम है क्या किया था मैंने. बट Yes, yes. Even I took that trade या with your. हाँ. सो आई टोल्ड क्लियरली, अभी ये जोन मार्क किया मैंने. ठीक है? ये जोन मार्क किया तो कैंडल इधर ही क्यों घुमा? Right. करेक्ट ना? और इसी जोन के ब्रेकआउट के बाद कोई पुल बैक भी नहीं आया, डायरेक्ट इधर गया. किधर गया? 48,160. व्हाट इट वाज? इट वाज R2 और कुछ नहीं. R1 के बाद R2, बीच में ऑफ कोर्स 50% कट मैंने लाइन डाल के रखा है, वो एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है ऑल टुगेदर. बट देखो कहाँ पे रिजेक्ट मारा, कहाँ से रिजेक्ट मारा? 48,160. Exactly. करेक्ट? एग्जैक्टली दैट पॉइंट. तो व्हेन यू नो दिस पर्टिकुलर रूल कि कैसे करना है, इधर क्या दिया था मैंने, सिंगल लाइनर सीपीआर है. ठीक है? तो व्हाट इज अवर रूल बुक सेज, व्हाट अवर रूल बुक सेज, सिंगल, एक मिनट, रिलेशन क्या है असेंडिंग सीपीआर में, सिंगल लाइनर सीपीआर है. ठीक है? सो व्हाट डज अवर रूल बुक से? सो वी हैव इट्स अ बुल ट्रेंड, वी हैव असेंडिंग सीपीआर. ठीक है? वेयर डिड द कैंडल ओपन? कैंडल ओपन बिटवीन CPR and R1. ठीक है? Buy at every dip to pivot. Only find buying opportunities in every pullback. तो अगर आप लाइव में मेरे साथ जुड़े होते तो लाइव में ना मैंने क्लियरली लिखा था कि यू ओनली हैव टू, लाइव में मैंने सारे मेरे ट्रेड सी के ही थे, पी का ट्रेड ही नहीं दिया था. इनफैक्ट 2 ट्रेड दिया था जिसमें स्टॉप लॉस हिट हुआ, वो पी का ट्रेड था. करेक्ट? Right.
तो दैट इज हाउ इट इज। ठीक है। हर्षित भाई, एक आपको मैंने टेलीग्राम पे आपको मैसेज किया है वो इंडिकेटर का, एक बार आप चेक कर लेंगे अभी वो परफेक्ट है क्या, वो जो वीकली सीआर एंड वीकली पिवट्स के लिए आपको लेकर। एक मिनट में check करता हूँ। I have got 8 responses. This is daily, weekly, monthly. डेली वीकली मंथली तीनों है उसमें। नहीं, डेली वीकली मंथली ठीक है, बट व्हाट सीपीआर आई एम गिविंग यू, आई एम शोइंग हियर, जो सीपीआर में दिखा रहा हूँ ना आपको, आई डोंट नो इफ दिस सीपीआर, एक मिनट होल्ड ऑन, आई विल जस्ट चेक, चेक की कर लेते हैं ना, वैसे भी फ्री है, चेक की कर लेते हैं। तो विच इज दैट इंडिकेटर, डी डब्ल्यू एम अंडरस्कोर CPR, हाँ यही है ना, कैमरिला वैल्यू एरिया, इट्स नॉट वर्किंग ओनली, व्हाई इज इट नॉट वर्किंग? टाइम फ्रेम का कुछ आई गेस सो, टाइम फ्रेम चेंज करके देखिए, एक बार 15 मिनट्स लगाइए, शायद काम करेगा। ओके, व्हाट इज दिस? ये प्रीवियस नहीं, ये क्या है, क्या ये क्या दिखा रहा, क्या है ये, क्या दिखा रहा है ये कैमरा दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है? शो वीकली रेंज है, वीकली वीकली रेंज है, कैमरा दिखा रहा है। डेली सीपीआर देखते हैं। हाँ, ये क्या है, ये जोन क्या है, ये जोन है क्या? पता नहीं उसका इंडिकेटर डिस्क्रिप्शन है, पर Then what is this line actually? No, I don't know. Too many lines on this. I don't know. Or main important why I showed you this, that indicator was, reason being why this indicator is, हाँ tomorrow's CPR is important. तो देखो आप देखो, ये जो इफ यू कैन सी माय स्क्रीन, रिप्ले करता हूँ, ठीक है, देखो, ये देखो, एज एंड व्हेन कैंडल गोज ना, ये सीपीआर चेंज होते रहता है, देखो देखो दिख रहा है, हाँ दैट इज व्हाई आई लाइक दैट इंडिकेटर। ज्यादा दिमाग खराब करने की जरूरत ही नहीं है, ये मेरे को है ना 325 में है ना बरोबर ट्रेंड बता देता है कल के लिए, तो बीटीएसटी लेने में अच्छा रहता है, मजा आता है, राइट राइट समझे ना? राइट, दिस इज द रीजन आई लाइक दिस इंडिकेटर, और कुछ नहीं, फ्रीली अवेलेबल है, ले लो, मजे ले लो इसका। अच्छा दर्शक भाई, एक और एक पूछना था, इन केस भी मतलब इस पे चार्टिंग तो अगर ऐसा कुछ स्कैनर वगैरह बनाया जाए कि जैसे वीकली सीपीआर इन नैरो रेंज या ट्रेलिंग सीपीआर, तो उस स्टॉक को क्या अपन एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो स्टॉक मतलब हफ्ता भर अच्छा ट्रेंड दे सकता है, मतलब रिप्लेसमेंट पुल बैक के ऊपर आपको अच्छा सेम ट्रेंड साइड में आपको ट्रेंड दे सकता है? 100%, 100%। See, I'll tell you. Okay, तो let me open this वगैरह चार्टिंग अगर बन जाए तो charting ना, charting scanner. You are 100% right actually. देखो चार्टिंग में ना, आपको क्या करना है, इधर जाके, इधर इंक चार्ट में नैरो सीपीआर, ऐसा कुछ होता है नहीं, ऐसे ही लिखते हैं ना, क्या लिखते हैं,
इधर लिख के कहाँ लिखते हैं, तो आ ही नहीं रहा है। वो उसके अंदर सर्च स्कैन के अंदर जाके आपको देखना पड़ेगा, सर्च स्कैन रन सर्च स्कैन, में। नहीं स्कैनर रन में स्कैन नहीं, इसके अंदर ऊपर सर, ऊपर जो येलो मेरे को कलर का पता नहीं, लिखा मैं होगा, एक्चुअली ये पहली बार यूज कर रहा हूँ। स्क्रीनर जो लिखा है ना ऊपर सर, ऊपर ऊपर जो स्क्रीनर लिखा है ना, स्क्रीनर्स, ऊपर जो स्क्रीनर्स लिखा हाँ, है उसके स्किनर अंदर, स्किनर स्क्रीनर, ओके। हाँ इसके अंदर अभी आप रूबी है, अभी आप उसके अंदर हाँ, लिखा इसमें होगा है ना सर्च अभी स्कैन। नैरो CPR करके डाला, ठीक है। नैरो वीकली CPR स्टॉक्स आ ही नहीं रहा है। नहीं सिर्फ नैरो वीकली सीपीआर आप नैरो डालोगे ना वीकली, वो भी आ जाएगा, या नैरो सीपीआर डाल दो, ओके क्राइटेरिया होगा। ओके। सो नैरो CPR वीकली कॉपी, आई डोंट नो इफ आई एम सीइंग इट राइट, बट हो सकता है, देखो देखते हैं। कोई नहीं है इधर, स्टॉक ही नहीं है कुछ। हाँ है ना इधर, सॉरी, ठीक है। इसमें चलो, दीपक नाइट्रेट में नैरो वीकली CPR है, तो वीक तो खत्म हो गया, बट ठीक है, देखते हैं। नैरो CPR है ना, तो कहाँ पे क्लोज हुआ है। मेरा प्रॉब्लम यही है कि वीकली में ना नेक्स्ट वीक का पहले ही नहीं दिखाता, जैसे ये दिखाता है, मैं वो मैन्युअली कैलकुलेट करना पड़ता है। राइट राइट। somebody was telling कि है करके। अब मैं ही बोल रहा था एक्चुअली, एक ग्रुप में एक जन एमी ब्रोकर का सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, एमी ब्रोकर सॉफ्टवेयर इज फ्री, क्रैक वर्जन मिल एमी जाता ब्रोकर इज अ है, ब्रोकर ना। नहीं नहीं, एमी ब्रोकर इज द मतलब आज तक में इज द बेस्ट सॉफ्टवेयर, ओके टू बी वन ऑफ द बेस्ट सॉफ्टवेयर। ओके, वो उसके लिए सिर्फ डेटा फीड आपको खरीदना पड़ता है, डेटा फीड जो है ना एमी फीड खरीदना अच्छा पड़ता है, आपको मिल जाता है वो एवरी मंथ का कुछ निकाल, 15 ले रहे हैं तो 2000 रुपीज चार्ज लगता है, इंडिया में अवेलेबल है, अच्छा, तो उसके थ्रू आपको मिल जाता है। उसके अंदर मैंने देखा था, मैं आपको चार्ट शेयर करूंगा उनके, पसंद है आपको। ठीक है, ग्रेट सर। चलो, इसमें तो दिख नहीं रहा है, तो मैं आई विल टेक CPR बाई गोमती शंकर। इनका CPR में आई विल टेक वीकली पिवट्स। Bro, I'm sorry, I did not understand the question. What exactly are you looking for? Weekly CPR के लिए you're looking for another indicator or something? वीकली CPR के लिए जो नेक्स्ट वीक का CPR प्लॉट करता है। Okay. I have something. मैं आपको I can send it across. ओके प्लीज सर, प्लीज। ठीक है, सो दीपक नाइट्रेट में इट इज सेइंग इट इज अ नैरो वीकली CPR विच 30 से लगा के 20, कहाँ 20 पॉइंट का मूवमेंट है। नैरो CPR कहाँ है ये। चलो ठीक है, नैरो CPR भी है, तो भी क्या करेंगे, इसका रिलेशनशिप क्या है इसका। इट्स एन असेंडिंग CPR। असेंडिंग CPR में इट हैज ओपन बिलो योर CPR, बट व्हाट वाज द ट्रेंड, ट्रेंड क्या एस्टेब्लिश किया, ट्रेंड इज पॉजिटिव बिकॉज इट्स बुलिश। वीकली टाइम फ्रेम में, आई एम सीइंग वीकली टाइम फ्रेम। आप वीकली हो डेली हो, द रूल बुक फॉलोज द सेम, कोई चेंजेस नहीं है। द ओनली डिफरेंस इज कि ऑन अ वीकली टाइम फ्रेम you have to use 1 hour कैंडल, ठीक है। समझ गए, इन स्टॉक्स पर्टिकुलरली। हाँ Yes, got it, got it. ओके, तो वी हैव एस्टेब्लिश द ट्रेंड कि इट इज बुलिश 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 बुलिश, ठीक है। अभी नेक्स्ट वीक का तो पता नहीं क्या है करके, बट इसमें क्या हुआ, लेट्स अज्यूम कि थर्सडे तक वी एस्टेब्लिश द ट्रेंड कि इट इज बुलिश, not Thursday, sorry, by 8th of December, 8th of December, which was a Friday, we established the trend कि it is bullish and it is closed above CPR, but next week का CPR नीचे था, ऊपर था, ठीक है। ऑब्वियसली बिकॉज इतना इतना बड़ा मूवमेंट आने के बाद, जब भी है ना कैंडल R2 और R3 टच करता है ना, टच करके जब तक CPR के नीचे क्लोज नहीं होता है, द नेक्स्ट डे विल ऑलवेज बी अ असेंडिंग CPR, ऑलवेज रिमेंबर, ठीक है। तो
यहाँ पे we established that next week, the entire week we are bullish, and Friday it has closed below the CPR of next day. We don't know next week CPR is above, but हम कैलकुलेट करेंगे तब मालूम पड़ जाएगा कि वो ऊपर था. तो हम क्या करेंगे, एक घंटा वेट करेंगे. एक घंटे में क्या हुआ ऑन मंडे. What happened on Monday? It opened between CPR and R1. ओके, इन बिटवीन मतलब उस CPR के ऊपर है, R1 के नीचे है, तो इन बिटवीन ही हो गया. ठीक है, सॉरी S1. तो उसके नीचे ओपन हुआ. ठीक है, दिस वाज ऑन मंडे, 1 hour कैंडल. तो व्हाट डज आवर रूल बुक से? सो आवर रूल बुक से इज, अरे सॉरी, our rule book says कि we have established the trend to be bullish. The trend is so we have a ascending CPR. It is opened between below. It is opened between CPR and S1, not R1. It is opened between CPR and S1. So buy at S1 and target will be pivot, or you can go aggressive to buy between pivot and S1 if not broken that line. समझ रहे हैं सचिन भाई? Yes, got it. So what it says is you have to buy on dips, you have to buy at S1, target will be pivot, or you can go aggressive and buy between pivot and S1 if not broken that line. So what you have to do, S1 और pivot के बीच में एक लाइन डाल देना, उसके बीच में मतलब 50% ऑफ इट. तो उसके बीच में अपने एक लाइन ड्रॉ कर दिया, समझो. तो हमने क्या किया, वीकली ट्रेंड में हमने CPR और S1 के बीच में एक लाइन ड्रॉ कर दिया, 50% लाइन. ठीक है, ये लाइन हमने ड्रॉ किया. एंड व्हाट डिड ही से? बाय. ब्रिज किया ये लाइन. Yes, मतलब ये सिर्फ विक आया है, उसके नीचे क्लोज नहीं दिया है. एग्जैक्टली. तो हुआ ना. राइट. आप ये ऐसा मंथली ले लो, ईयरली ले लो, वीकली ले लो या डेली ले लो, सिनेरियो इज गोना बी द सेम. Right, the rule book is gonna be the same. The points to be considered will be the same. एग्जैक्टली. है ना ब्रह्मास्त्र? मजा आया कुछ? Yes, very informative. Actually, इस तरह के सेशंस अगर वीकली हो ना तो काफी कुछ नया सीखने, नया देखने मिल जाता है. हाँ. We get to know new ideas, ना. Yeah. And it's been in the system from 50 years now, 50-60 years. ठीक है. So the entire market is divided into two parts. The entire market in the sense, the entire market indicators, ठीक है, are divided into two parts. One is your price movement part. The second one is the volume part. ठीक है. So people who are deep in it, like my close friend, he uses volume to predict the price movement. ठीक है, whether it will go up or down. What I use price movement to predict where it will go. Okay, I also, but what I have evolved as doing is I have used the price movement in correlation with volume to make my trade convicted trade, मतलब with high conviction. This is what builds my conviction as high. इसके लिए मैं वीडियो में ओपनली बोलता हूँ कि इधर तक जाएगा. The reason why I say is because of this. When I combine CPR, which is a price movement indicator, price based indicator, with the volume indicator, then I can tell you the levels. ठीक है.
Okay, guys. और कुछ? I hope you guys heard the last what I said. Yeah, we got it, got it. Hmm? Got it, ना? ठीक. Got it. Fantastic, fantastic. ठीक है. तो Sai Kiran Patil, you have any question? Santlal sir, लीव में No, sir, no question. लीव में जाने से पहले आपको समझ में आ गया? हाँ सर, समझा। वो डॉक्यूमेंट मिल जाएगा तो टेस्ट और स्टडी करेंगे तो हाँ, श्योर श्योर. रूल बुक। रूल बुक में आपको बताया. तो इसके लिए हम बोलते हैं रूल बेस्ड ट्रेडिंग, इसके लिए बोलते हैं. सर, ठीक है. वैभव जी, यू हैव एनीथिंग एल्स? No, I'm good. Just that ये so I don't know कोई फॉर्म या कुछ नहीं था. How do I get in touch with you? अच्छा, आपने how do you get the link of this? It was in one of the groups. It just had the Meet link. अच्छा, Nothing I have else. posted my phone number, so you can Mhm. drop me your email ID. I will ask my office to send you the document, Okay, and you can call me anytime post market hours. sure. ठीक है. And if you have anything to say, ठीक है. Done. और कुछ है तो बताइए. I can answer. पाटिल जी, हाँ भैया, वो कॉल कट हो गया अपने आप से. कॉल वो कर. इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छा था भैया सेशन. अच्छा, कुछ यूजफुल सीखने मिला नहीं मिला, वो अच्छा तो रहता है सब. मैं वो कभी कभी क्या लगता था कहाँ पे आके रुकता मालूम नहीं पड़ता था. इसको हाँ कल से यूज करके देखता हूँ हाँ. सर मंडे. मंडे से आप यूज करो, लाइव हाँ में भैया. जुड़ो तो आपको मालूम पड़ेगा. लाइव में क्यों हाँ जुड़ना भैया. चाहिए? लाइव में जुड़ना चाहिए आपके डबल कन्विक्शन के लिए. हाँ खैर सही है. ठीक है. नहीं, वो एक्चुअली मैं मोबाइल से ही ट्रेड करता हूँ ना, इसलिए वो लाइव नहीं जुड़ पाता था मैं. अच्छा. हाँ, इसलिए भैया, नहीं तो उसके लिए अलग अमित से बात किया आज. अच्छा, बात किया आपने? हाँ, बात किया भैया. उसके लिए क्या कैसा करना बोल के मैं मंडे से ज्वाइन कर लूँगा. बट कुछ इंटरेस्टिंग सीखने मिला, मतलब ये आज बहुत अच्छा था भैया. कोई नॉर्मल प्राइस एक्शन फोर्स है या वैसा कुछ है जैसा दिखा? नहीं. बहुत अच्छा था भैया. ठीक है पाटिल साहब. हाँ, थैंक यू भैया. थैंक यू. एनीथिंग एल्स गाइस? और कुछ है तो बताइए, अदरवाइज आई विल एंड दिस सेशन. दिस वाज वेरी फास्ट. थैंक्स अ लॉट गाइस. अगर प्लीज, I don't know how you will put reviews on this, but मैं analysis video डालने वाला हूँ आज on Bank Nifty and Nifty. I will put it tomorrow. अगर Bank Nifty में analysis video डालता हूँ तो please I request you guys to please comment on that video. मेरे को एक भी comment आता नहीं है. I don't know why. comment कीजिए एक बार तो मालूम तो पड़े. ठीक है. thanks for the session. Thanks for the session and thanks for your efforts. Thanks a lot You sir. have given your precious time and your learnings you have shared with us. Thank you very much. अरे कोई नहीं सर, कोई नहीं. Great sir. Thanks, sir. Thank you संतल भाई. बाय बाय. थैंक यू वेरी मच. Thank you पाटिल साहब. Thank you, Harshit. Thank you. Thank you Vikram. Sachin Pandey ji, you can exit. पाटिल साहब आप एग्जिट कर दो ना.